ICI. He is co-author for the book under publication by Committee on Information Technology on early warning signal of fraud through credit weaknesses. He is committee member on study group for advanced ITT course set up under Board of Studies also. He has published many articles or article papers in many platforms. Co-author of a manual on concurrent audit of banks by ICAI, review of a demonetization activity by chartered accountant in banks, internal audit standard board ने बनाई है ये ICI के. Then audit of foreign exchange transaction in statutory bank branch audit published by EIRC. Then he is audit of foreign exchange transaction in statutory bank branch audit published by WIRC. And he has presented, जैसे गुरुजी के नंबर बढ़ते हैं ना, जैसे इन्होंने पिछली बार भेजा था वो 400-500 लेक्चर थे, आज की डेट में इनके भी 700-800 हो गए होंगे. तो उस चीज में और टॉपिक की तो इतनी लिस्ट है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूं कि ये पूरी लिस्ट है जो टॉपिक जो कवर करते हैं. तो आई विल विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई विल रिक्वेस्ट कुंतल पी शाह जी टू प्लीज स्टार्ट द डेलिब्रेशन. Before you start, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि the challenges in the last 5 years that the auditors are facing from 5 years before and today, एक उस पे छोटा सा रोस्टर जरूर डाल दीजिएगा. Thank you. Sure. Thank you, Ashwini ji. Thank you, Rajesh ji, Kul sir. The members as well. On a busy schedule, personal schedule of Sunday, a lot of members have also joined in. It is always difficult to study on Sunday, and that too, especially after finishing all these income tax related work and everything. It's challenge for me as well. I came back to Ahmedabad yesterday night at 1 o'clock only, and again traveling for 10 days from tomorrow onwards. But fair enough, that's a part of our practice and passion. Today, when I was discussing with Ashwini ji that which topic should we select, we zeroed it on certain points. Though my actual presentation is about 6 to 7 hours, but I'm not going to take that much today. But I'll take important portion of that, and we'll ensure that we'll cover all the important parts of the bank audit related issues. Atul ji also has a valid point that we should touch upon that aspect where what was there 5 years before, what is there right now, and I would add my point is that what we can expect in next 5 years as well. Right. So, see, things are changing at a very rapid speed. I was discussing with Ashwini ji as well when he was referring to 90%, 70% issue. I said, sir, it is high time, not only in the bank audit, but also in the normal work of our profession as well. If we do not update ourselves, then we'll be out of the business. And it is a very do and die situation for us. So what we need to do is we need to understand the issue, we need to understand the audit, we need to understand the systems as well, and then only we can perform the audit. Our basic or the fundamental of audit is not going to change. What is going to change? The manner in which we carry out the audit. So that's why it is here out of my passion that I want all the members to go through such kind of material or whatever is available, just grab it, just implement it. मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा प्रेजेंटेशन जब शुरू करेंगे. आप एक हो सके तो पेन एंड पेपर या कंप्यूटर में आप साथ में रखिए. मैं आपको बताऊंगा, पर्पसली मैंने उसको तैयार नहीं करके दिया है. अगर मैं ही सब तैयार करके दूंगा तो आप उतना उसको यूज नहीं कर पाएंगे. अगर आपने खुद बनाया है तो आपको सही में उसका बेनिफिट मिलेगा. आई विल गिव यू द एंटायर थॉट प्रोसेस आउट ऑफ इट एंड क्यों उसको बनाना है वो भी देखते हैं. व्हाट वी विल डू इज टुडे इज दैट वी विल अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द इंट्रिकसीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एनपीए, सीबीएस कमांड. यस, इट इज गोइंग टू बी देयर, बट दो चीज मुझे और एक करना है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इस साल आई थिंक last week only in the same study circle you had this session on changes and Jain sahab aaye the और I think President sahab Chokra sahab aaye the
मैंने थोड़ा कनेक्ट किया था बट फिर मैं नहीं कर पाया था, तो उन्होंने बताया ही होगा चेंजेस क्या आए हैं, बट उसको सिस्टम में क्या इम्पैक्ट आया है वो एक समझते हैं, बिकॉज वो बहुत ही जरूरी है। आप जो सर्टिफाई करने वाले हो LFAR के अंदर या रिपोर्ट करने वाले हो, राइट, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और कहाँ कितना लिखना है वो जानने का बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट विल बी अ डेथ नेल फॉर अस इफ वी रिपोर्ट और इफ वी डू नॉट रिपोर्ट प्रॉपरली, राइट। तो ये सब इकट्ठा करके एक बनाते हैं, और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप Q&A बॉक्स में या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर मैं पूछूंगा या लास्ट में जैसे होता है, और हम क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन. Since I am an auditor like you, I'll start with my disclaimers. These are my personal views and need not to be construed with the views of this study circle or my firm. It should not be considered as in professional advice. Images, screenshot, menu code, software name, etc. the property of respective software developer and trademark owners. And information in this presentation is not for commercial. It is merely for guidance. So starting with the packages that are in use. Currently, 3 predominant packages are in use in banking side. That is Finacle, FlexCube, and TCS banks. Finacle is currently having 2 active versions, Finacle 7 and Finacle 10. Most of the banks have got migrated to Finacle 10, but few banks are still there on Finacle 7 and might be in a process of getting it into the Finacle 10. FlexCube and TCS banks are also there. Other 2 are Alnova Financial Solutions and SAP Banking Services, not used in India, but used other part of the world. Even Finacle is also used in the African and certain other countries as well. Okay, so starting with this, I feel this is very important and we need to work on to these 3 circular, and one more circular is there that I will refer to in next 2 to 3 slides. So please make a note of this, that these 3 circulars and the 4th one that I'll be referring to in coming in few minutes from now, we need to read at least twice. There is a paradigm shift in the stance taken by Reserve Bank of India. Earlier, we used to have certain things, or rather bankers used to interpret in a different way or a convenient way, whereas now RBI has clarified everything, almost everything, and we have now very crystal clear guideline available in certain aspect. The problem now is emerging is that RBI has clarified a lot of things, but whether systems are ready to take care of those changes, that is what is very important. And if systems are not in a position to accept this part, what will we do as an auditor when we report certain thing into our main audit report or LFAR? So that is what is we need to understand. सबसे पहले क्या करना है, एक तो एक मास्टर सर्कुलर नया आया जो पहले था 1 जुलाई 2015 का, वो अभी चेंज होके 1 अक्टूबर 2021 को आया। सबसे पहले क्या करना है, वो सर्कुलर आपको लेना है। वो सर्कुलर लेने के बाद आपको एक एक्सेल शीट ओपन करना है। एक्सेल ओपन करना है, उसमें 4 शीट ओपन कीजिए। 4 शीट का हेडिंग ऐसे लगाइए, डाउनग्रेडिंग, अपग्रेडिंग, प्रोविजनिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। डाउनग्रेडिंग, अपग्रेडिंग, प्रोविजनिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये 4 शीट लगाइए। पूरे सर्कुलर को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। माने आप सर्कुलर ओपन कीजिए, उसका पैरा बाय पैरा कॉपी कीजिए, एक्सेल में डालते जाइए। जो जो जगह पे वो पड़ता है उसमें डालते जाए, इंक्लूडिंग रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो भी डाउनग्रेडिंग, अपग्रेडिंग जो भी आता है, प्रोविजनिंग और इनकम रिकॉग्निशन, वो सब उसमें डाल दीजिए। आपके पास ये एक्टिविटी करने के बाद एक पूरा फाइल होगा जो डाइसेक्ट किया हुआ रहेगा। वो क्यों जरूरत है वो मैं आपको जब LFAR बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इसका ये फाइल का क्या जरूरत है। उससे 2 काम हो जाएंगे, आपका पढ़ने का पढ़ना हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट होल्ड ऑन टू द एंटायर सर्कुलर। The second part that you need to do after doing that part is that you need to replace the existing text with the clarification issued on 12th of November as well as 15th of February. 12th of November circular and 15th of February circular has have clarified lot of things. Rather, now I will say that there are almost no ambiguity left in any of the issue that we were facing till date.
ऑलमोस्ट सब कुछ आरबीआई ने बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल दिया है। दो हमारी गाइडेंस नोट के अंदर लास्ट 2-3 साल से इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करके काफी सारे क्लैरिफिकेशन दिए थे जो इवन रेगुलेटर के पास से नहीं आए थे, बट इस बार हमारे पास बहुत ही अच्छे थे। नाउ द रेगुलेटर इज ऑल्सो इकोइंग द सेम व्यूज, and that is the good part on our institute as well, that we have worked on to certain aspects. So let's start with this one. What are the important changes आपने already कर लिए होंगे आगे के सेशन में। मैं आपको सिर्फ सिस्टम के साइड पे बताऊंगा कि इसको सिस्टम में क्या ध्यान रखे, what you can expect into the system, whether systems are set up in that way or not. So please read it in this context. Para 2.1.3, which refers to identification of NPA account based on basis non-payment of interest. So it says that in case of interest payment, bank should classify an account as an NPA if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of quarter. Fair enough. This is what the existing guidelines are. 1st of October की guideline था। 12th of November को रिजर्व बैंक ने ये चेंज कर दिया। Para D.8 of that circular, in case of interest payments in respect of term loans, an account will be classified as NPA if the interest, mark the words from now, applied at a specified rate remains overdue for more than 90 days. Gone are the concepts of during any quarter or at the end of financial year or at the end of balance sheet date or kind of thing. सब चला गया। अभी आपको रोलिंग पीरियड पे देखना है, पीछे जाना है। जैसे आपके पास कोई इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू हुआ है तो एवरी डे देखना है सिस्टम को कि वो सिस्टम पीछे जाए, 90 दिन में देखे कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या है, वर्क कैसे कर रहा है। नॉट दैट यू नीड टू सी इट एट द एंड ऑफ द मंथ और अ क्वार्टर और एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। नहीं, कोई भी साइड देखो तो वो दिन के पीछे और वो दिन के आगे, 90 दिन माने 90 दिन। So that is what we need to understand. Now the problem from system side is this, whether system, the CBSE is configured, reconfigured into this aspect, a major challenge. So we need to first understand, अगर नहीं हुआ है तो आपको clearly ये लिखना है। कैसे पता चलेगा? आपको एक्चुअली टेस्ट करना पड़ेगा। सिस्टम पे नहीं होगा तो आपके पास जो अकाउंट्स है उसके स्क्रूटिनी में ये एस्पेक्ट भी देखने हैं। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट में ये सिस्टम अपडेट हुआ या नहीं, बिकॉज आप ब्रांच लेवल पे हैं, आपके पास काफी सारा एक्सेस या प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको मांगना नहीं है। यू नीड टू फर्स्ट आस्क दैट वी वांट दैट हाउ दीज चेंजेस हैव been affected into the system and what are the process documents. So once you get hold of that, I'm sure that probably many of the banks that do not even share, or they'll say that we don't have any, but everything is taken care of at head office level. But at least take a written answer either through email or through letter or anything, and refer that into LFAR. Please don't make your LFAR yes, no, thank you report. It will be death knell for you. Please don't do it. Mention everything. What you have gone through, what you have received, what you have, the activity that you have carried out, what are your observations? Mention that. Now, a lot of members say that, sir, the problem is that now LFAR is to be uploaded onto the designated website prepared by the banks. In that, we only get yes, no, not applicable, and only if we select no, then only this textual information opens up. So I would always say that always say negative, though even though you don't have anything, but you need to mention your points, right? So in that scenario, just ensure that it gets enabled by hook or by crook, but mention your points. Don't let go this LFAR just by going it in a way that yes, it is clarified. No. Please don't do such kind of thing. Otherwise, it will be very difficult for you to get out of all this mess probably created at the bank side. The second important change is on the definition of out of order. The 1st of October circular said, in case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the balance sheet date. So the reference was as at the balance sheet date. Now the reference is changed to 12th of November through 12th of November circular. The outstanding balance in CC account is less than the sanction limit drawing, but credits are not enough to cover the interest debit during previous 90 days period.
That is, it is on a rolling day basis. You stick on to one day, go back 90 days, and then you ascertain whether this amount was received or there are any issues with respect to which is the account can be classified as out of order or not. Now on 15th of February 2022, there was one more clarification linked to this one. How to compute 90 days, whether the day on which this interest run was as the process, end of day process was carried out to be considered or not. So they clarified that as well. The previous 90-day period for determination of out of order status of a CCOD account shall be inclusive of the day for which the day end process is being run. See, this is even for one day, the Reserve Bank of India has given a clarification. So you can't now hide or you cannot say anything that Reserve Bank of India's guidelines are ambiguous or not in sync with the actual reality. Now you have everything. One more important point, if you have read through this circular, is this. This out of order definition is applicable to all loan products being offered as an overdraft facility. Just remember, you might have seen drop line OD kind of products. When you used to say this to the bankers that, sir, this drop line OD is required to be considered as a CC as per for NPA identification, the bankers used to blatantly deny that and stating that it is only a term loan product. But when you say that, how do you operate this account? They say that you can deposit, you can withdraw, everything you can do. Then at that point of time, they say it is an OD product. But for term, this NPA identification, they used to say that it is a term loan product. So it can't be a convenient truth. It has to be a truth. And now RBI has also clarified this. All these accounts are required to be classified as overdraft facility. Please see to it in this case. ये केस के अंदर आपको काफी सारा और बड़े बड़े बैंक्स जो है, सबसे बड़े बैंक है, उसके अंदर भी ऐसे बहुत प्रोडक्ट है ड्रॉप लाइन ओडी के. ड्रॉप लाइन ओडी के प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे इश्यूज मिलते हैं और अगर ये पूरा इंप्लीमेंट हुआ तो काफी सारे अकाउंट एनपीए हो जाएंगे. सो प्लीज ये ध्यान से देखिए, जहां जहां ड्रॉप लाइन ओडी है या ओडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, जहां रिड्यूसिंग लिमिट हर महीने रिड्यूस होता जाता है, तो ऐसे केसेस को ध्यान से देखिए. Now this is the fourth circular that I was referring to earlier. You can make note of this circular. It is a circular of 14th of September 2020. In that case, Reserve Bank of India has stated that banks should establish appropriate internal systems, including technology-enabled processes for proper and timely identification of NPA, including putting into the necessary infra to comply with the requirement on automation of income recognition, asset classification, and provisioning process in the banks. Now, what are the important points out of that circular? The important points are asset classification to be included in day-end process. Very important one. Meaning thereby, the process should be carried out on daily basis. Gone are the days वो बोलते थे कि महीने के एंड में करते हैं या बैलेंस शीट आएगा तब करेंगे या क्वार्टर आएगा तब करेंगे एनपीए रन के लिए. नहीं, अभी हर रोज रात को एनपीए आइडेंटिफाई होगा और वो करते भी थे बैंक. प्रॉब्लम क्या था, कुछ चीजों में वो मैन्युअली कर देते थे, ये कर देते, चेंज कर देते, हमको पता नहीं चलता था. ये सर्कुलर के बाद अगर उनको मैन्युअली टच भी करना है इन एक्सेप्शनल सिनेरियो, देन आल्सो देयर हैज टू हैव अ कंप्लीट प्रोसेस. लॉग होने चाहिए और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए कि भाई कैसे आप करोगे, क्या करोगे और उसके काउंटर बैलेंसेस क्या रहेंगे. Ask them. If they don't provide it, just mention it in your LFAR that in terms of this circular, this is what is required. However, the bank has refused to provide, or bank had not provided, or bank do not have the process. Whichever way is the point. But please write it. You simply can't say that your system is functioning perfectly just because in 5 accounts you have test checked and everything was perfect. No, in revised LFAR, it requires you verification on 2 counts. Accounts beyond the threshold limit where the transaction detailing is required, and accounts below threshold limit where you need to do system and the control review. You can't shy away with your responsibilities. You cannot shirk away as well that no, 5 account मैंने देखे बराबर थे तो बराबर हो गया audit. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. You need to see the system, you need to see the processes as well.
right? So what are the points? It has to have a rule based classification. Gone are the days कि इसको करना है NP, इसको नहीं करना है, बचा लेना है, छोड़ दो, मैन्युअली उसके अंदर टच कर दो कि अरे इसको NP नहीं करना है थोड़े दिन के लिए, ये सब गए दिन. Oh, you cannot have such kind of things now. It has to be rule based. If you happen to find any of the case where you have found that the NP is not identified by the system, but you identified it based on the logic and the prescription of Reserve Bank of India's IRA guideline, mention that in LFR as well, where we have been told to report whether system takes care of all NPA, SMA. Even SMA is also asking. LFR is asking that whether SMA identification is correct or not. See, point is that now everything we need to certify, or rather we need to report onto, and we are not doing certain aspects. So please check these aspects. Now it says that even provision should be system based. Recognition, derecognition of income to be system based. Upgrade, downgrade to be handled by the system. Upgrade के लिए बहुत ही बढ़िया clarification आया, जो अभी तक बहुत सारे माथापच्ची चलती थी बैंक्स में, जो आरबीआई ने बहुत क्लियरली बोल दिया है that upgrade can only happen when entire overdue, that is interest and principal amount, is paid by the borrower. So not only the facility, all the facilities of the borrower. So on the date of upgrade, there should not be a single rupee overdue in any of the facility of the borrower. If at all there is a single rupee of overdue, you cannot upgrade the accounts as well. So what is important from our perspective as an auditor is that we need to take the changes in NPA report. We need to see to it that when the account, which are the accounts which got upgraded, check the date of upgrade, go into the system and verify that what was the balance or what is the overdue amount, or you can review the irregularity report of that day for all the accounts of the customer. Is there any of the account of the customer where there is an overdue? If so, the system is not properly configured. See, this is what the entire thing that we need to do. हमको एक और चीज क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए एक जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना है. अभी आप जो यंग लड़के रहते हैं हमारे यहाँ आर्टिकल में, जिसको थोड़ा कुछ पता चलता है उसको एक काम दो, जिसको थोड़ा ज्यादा पता चलता है उसको दूसरा दो, बट हर एक के जॉब कार्ड बनाओ, अदरवाइज काम खत्म ही नहीं होगा. आपके पास 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, राइट, एक ब्रांच खत्म करने के लिए. यू कांट वर्क इन दिस वे अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो. प्लान के लिए आपको कार्ड्स बनाने हैं कि भाई इसको ये देखना है, कैसे देखना है, क्या देखना है और क्या रिपोर्ट करना है. तो ये तैयारी करके जाना है. अदरवाइज सी गॉन आर द डेज. अतुल सर ने ऑलरेडी मुझे ये क्वेश्चन करके रखा है कि 5 साल पहले क्या था और अभी क्या है. दैट्स द पॉइंट दैट इवन 5 साल पहले हम कुछ काम करते तब उतने रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस भी नहीं थे. अभी तो बहुत क्लैरिटी आया है. लॉट ऑफ वाटर हैव फ्लोन इनटू दैट वन आफ्टरवर्ड्स. So now we need to up our end, right? Because regulator is now very aggressive in terms of certain aspects. The bankers are also aggressive. I was discussing with Ashwini ji about 70-90%. There is one of the report that went into the parliament stating that only 2% of branches have an MOC. And that denotes that 98% is perfect, meaning thereby the system is perfect. You don't require an audit at all. So that is the problem probably we might have faced in GST as well. GST, we got the payments done through GSTR 9, instead GSTR 9C, and then the reports were made in that way that audit तो कुछ करते ही नहीं है. Audit GSTR 9C में तो कुछ पैसा आया ही नहीं है. जो पैसा आया है वो तो annual return पे आया है. So it may boomerang on you as well. So what we need to understand is that I just discussed this one, that first thing is that you need to work. Second thing, and the important thing in current context, is you work and you show that you have worked, rather than only working on that aspect that you just show that you work. No, आपको second level पे रहना है कि आप काम भी करें और जताए भी सही कि आपने काम किया है, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी रखे. हम क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, बट प्रेजेंटेशन की बात आती है, at that point of time we lack. I don't know for what, whether we have an issue with the language barrier, या हमको काम करने में मजा आता है बट लिखने का आता है तो नहीं आता है. We need to come out of this cocoon shell. We can't remain in this kind of environment. Write it. जो भी लगता है आपको लिखो, right?
Now, this is what the RBI has clarified with respect to upgradation. That is on arrears. Earlier, the word used was arrear. Now, categorically stated only if entire arrears. See, read this one. Otherwise, there was no need. It was pretty clear, but the bankers used to take it in the other context. They used to say that no, the only critical arrears are required to be considered. Critical arrear माने 95 दिन का ओवरड्यू है तो 6 दिन का पैसा ले लेंगे इक्विवेलेंट टू 6 डेज और बोलेंगे 31 मार्च पे वो 89 डेज है. नहीं, आपको पूरा पैसा लेना है, आपको ऐसे ही नहीं जाने देना. दूसरी बात, हाँ एक और चीज, अभी तो नहीं करते हैं कोई लोग, बट अगर करते हैं तो ध्यान में रखिए. आपको काफी बार बैंकर्स बोलते हैं कि सर देखो आप ऑडिट पे आए 8 अप्रैल को, हमने वो उसका अकाउंट में प्रॉब्लम था, हमने 5 अप्रैल को पूरा पैसा ले लिया, आप उसको एनपीए में से हटा दो, एमओसी दे दो. फॉर व्हाट रीजन? You are certifying the financial statements as on 31st of March 2021. Nothing beyond that. Except in a scenario where you find that an extreme condition whereby the recovery is compromised for a particular customer borrower and you think that it has to be classified as NPAs on 31st of March basis event occurring after balance sheet date. But you cannot apply this terminology event occurring after balance sheet date on a recovery if at all the bank is proposing that sir आपका यहाँ एक accounting standard है जिसमें लिखा है कि events occurring after balance sheet date तो आप उसको कर लीजिए. तो आपको बोलना है हाँ ठीक है सर कर देते हैं, तो 8 तारीख का हम शेड्यूल करते हैं कि 8 तारीख तक जितना हुआ वो रिकवर करते हैं, बट 8 तारीख तक जितना नए एनपीए हुए वो भी आपको एनपीए करने हैं. It cannot be a one-way street. Right, but I will say that don't enter into that argument. 31st March is 31st March. I'll not name one of the company, but I can name the bank. I think it was Bank of India. Few years back, auditors, Central Statutory auditors, the account was 91 day overdue as on 31st of March. 1st of April was in holiday. 2nd of April, they got the RTGS to clear off all the dues. Banker said that you upgrade this account as on 31st of March. Auditor said nothing doing as on 31st of March. It is 91 days. My guideline, that is IRA guideline, says if it crosses 90 days, it has to be identified as NPA. In that scenario, I won't be upgrading this account. Amount was 900 crore. The matter went so worse that the Q4 of that bank went into red, right, because of this account. Then the bankers complained against the auditor to the Reserve Bank of India. Now you will be thinking that how I was able to get this much of information. It was reported in media. I don't have any personal information or private information, nothing. It was reported in pink papers. Right. So if that is the stand taken, because see, Reserve Bank of India will also take the same stand. But if you take a contrary stand, probably you may expect a letter from Reserve Bank of India, that is the regulator, that how come you have taken this stand where nothing is mentioned in IRA guideline that you can take a subsequent recovery as well. See, when the regulator is pretty clear now, so there is no ambiguity or no double thought processes to be applied. That नहीं मुझे लगता है ऐसा होता है या ऐसा होगा. नहीं, जो है वो करना है. That's it. So this is what I was referring to the changes side. What you need to take care into understanding the system. Now, sir कोई question है? तो वो एक देख लेते हैं. I think एक आशुतोष जी का क्वेश्चन है, will it be applicable from the date of circular or start date? सर वो एक सर्कुलर फिर से ओपन कर लीजिए, उसके अंदर हर एक एस्पेक्ट के लिए डेट दिया हुआ है कि ये एस्पेक्ट ये दिन तक करना है, ये एस्पेक्ट ये दिन तक करना है. तो आप जस्ट सर्कुलर एक बार पढ़ लीजिए, उसमें आपके सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. एज फार एज मास्टर सर्कुलर इज कंसर्न, वो तो इमीडिएटली एप्लीकेबल है. कुंतल जी मैं एक शेयर करूं इन very large nationalized bank. I took the stand that I will not do non-NPA. So their balance sheet was affected because 4 branches I did.
and the entire branch, the entire bank things, shaken. मेरा owner business देना बंद कर दिया. They stopped giving me audit. I said कोई बात नहीं. But I did not compromise. Right. Sir, I always say this, that see, it is your impeccable reputation and your work that speaks rather than work that they'll be giving it to you. It will help you in longer run. Secondly, if at all at certain point of time the regulator comes knocking at your door, then you should be in a position to present your case as well. Nobody is going to help you at that point of time. At that stage, nobody will come to your rescue. Exactly. So you will be at your own only. One question is there in Q&A. Hari Narayanji has shared this. Is any parameter changed by RBI for audit in terms of advances? I'm not sure what you exactly wanted to say. Can you just elaborate more, Hari Narayanji? Sir, what we'll do now is we'll first take the audit requirement in terms of revised LFAR. We'll understand the nitty-gritty of LFAR, important aspects, the common aspect I won't be talking about, the changes and the process that we need to do in carrying out this one. Okay, so Hari Narayan ji has mentioned that for type of branches that are to be audited. Sir, अश्विनी जी एक काम कर सकते हैं, आप वो 90-70 वाला जो इश्यू है ना, एक थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए क्या है, तो मेंबर को भी पता चले कि एग्जैक्ट इश्यू क्या है, और उसके बाद आई विल पिच इन. सर अभी 90-70 वाला इश्यू जो मेरे को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पहले तो देखो मेरी अमरजीत चोपड़ा जी से भी बात हुई और भी 2-3 जगह पे बात हुई, तो इंस्टीट्यूट ने हमारा बड़े अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया जो आरबीआई में, तो इट वाज होपफुल कि इट विल बी डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर एट लीस्ट. तो अभी भी वी आर होपफुल कि वो डेफर हो जाए, लेकिन रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी ये डाइसी है कि इस बार से भी इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन जो सर्कुलर है वो विद जो अलॉटमेंट का इनको पैनल आएगा ना बैंकों को, उसके साथ ही आना है. अभी वो नोट जो है ना पेंडिंग ही पड़ा है विद आरबीआई, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है. अश्विनी जी, फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको रिक्वेस्ट किया जाए बैंक आरबीआई को कि हमको टाइम ज्यादा देना, फिर टाइम तो देते नहीं है ऑडिट के लिए. चलो वो चीजें डिस्कशन का पार्ट नहीं, अभी तो यही है कि एडवांसेस रेशियो क्या कवर करेंगे, वो इंस्टीट्यूट ने अपना देखो पूरा जोर लगाया हुआ है. तो मेरे ख्याल में अभी नोट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि वो पुट अप पड़ा है इन द आरबीआई, तो वो जैसे ही पैनल रिलीज होगा ना नियर अबाउट होलीज 16-17 के बाद, उसी समय ही वो आएगी डायरेक्शन की 90% की आती है, 70 की आती है, या मिडवे आती है कोई 80-85 की. Yeah, Hari Narayan ji, I'm not sure whether you are aware about the background of this case. Sir has given you the updated information. I'll just give you the background. Background is like this way, that Reserve Bank of India had stated earlier to the banks that 90% of advances are required to be audited through the branches, right? So now that part is now being thought as that let's keep it at 70%, meaning thereby the end impact is that probably the number of branches will go down, and hence new auditors won't be in a position to enter into this one, because the existing auditors would be able to complete this entire assignment, right? So that is what the thing is, and Ashwini has updated whatever information that he had with respect to the current scenario, right? Okay, so now let's go into the detail of revised LFAR. LFAR got amended on 5th of September 2020. So last year was also under revised LFAR only. And you might be thinking that why I'm taking this once again. Last year, we all are aware we were grappling with the COVID related aspect, second wave, the deadliest wave that we had in our country. And at that point of time, a lot of issues we faced with respect to auditing or remote auditing or kind of thing. In that case, what has happened was that much attention could not be paid to this aspect, that is LFAR part. Why I'm saying this, it has a far-reaching impact onto the auditor and the reporting on for bank audit. So let's understand first what are the important aspects. If at all we have not paid that much attention last year, we need to read this again. We need to recalibrate our points, how we will be auditing.
Guiding principles for the amended LFR are transaction testing. So you need to now do a transaction detailing as well, meaning thereby you need to go through the transaction in detail for a certain set of accounts. Second guiding principle is providing input to the central statutory auditor on adequacy of implementation of various policy and regulatory requirements, efficacy of the system, and assurance function, that is risk management, compliance, and internal audit. Right. So these are all guiding principles. What is expected from in this LFR? Certain points are like minefields. The moment you put your leg onto that one, it might burst as well if you don't pay attention to. Right. So one is review of transaction. There are two aspects. Accounts which are beyond threshold require detailed transaction detailing. Accounts which are below threshold limit, system and processes to be checked and commented upon. Now, what is threshold limit? We'll check in the next slide. The most dangerous part that I find in this LFR is this one: verification of data integrity. Now, understand, you are sitting at a branch, and read this once again: verification of data integrity and data related control systems first on data input used in MIS at corporate level. Now, first and the foremost thing is that how you will be in a position to understand what is used in the corporate level for MIS. Secondly, if at all you find that, how will you check the integrity part? That is going to be a very challenging task. What we need to check is that the data that is getting inputted, whether the same is getting processed as well or not, or are there any loopholes available whereby you can change the data without even proper authorization. We need to check everything and then we need to report. So if you find any issue, let's say in a sanction letter, something is mentioned in the system, something is there, you need to very well mention that there is an issue with the integrity itself, that it was correctly updated, thereafter someone changed it, and there are no documents available for the such change. So we need to report it, all these things in that manner, whereby we'll be in a position to report our aspects. But before doing this, what we need to do is we need to ask the branches, just give us the data input that are used in MIS at corporate level, right? Because that is what they need to do it. जो मांगा है वो तो देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो एक काम तो अच्छा हो गया कि आप लिख दोगे कि हमको ब्रांच से कोई डेटा नहीं मिला है, सो हमको पता नहीं है क्या है, बट बेस्ड ऑन आवर ऑडिट प्रोसेस वी कैरिड आउट सो एंड सो एक्टिविटी एंड वी ऑब्जर्व दिस वन. सो पहले ही बोल दो कि डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, बट फिर भी मैंने काम तो किया है और काम भी करना है, राइट? मैंने क्या बोला था, काम भी करना है और दिखाना, जताना भी है कि काम किया है, राइट? काम भी करो और उसके बाद लिखो, but simply do not stop at the point that branch did not provide us the information. That is not the correct way of working, right? Okay, and this is where the entire crux of that threshold lie. For this purpose, I am referring to only important aspect and how to do it. I'll come to the commands as well. Don't worry, I am aware of that. You all are eagerly waiting for the commands. But let's understand first the global system, and then we'll play around. So we'll create a boundary, and thereafter then we'll start playing around with within that boundary. So LFR states that large advances are those in respect of which the outstanding amount is in excess of 10% of outstanding aggregate balance of fund-based and non-fund-based advances of the branch, or 10 crore, whichever is less. Now understand this one. Earlier 2 crore का लिमिट था और 2 करोड़ के साथ सिर्फ एफडी का परसेंटेज चेक करना था, फंड बेस्ड लिमिट का. अभी क्या बोल रहे हैं कि फंड बेस और नॉन फंड बेस. अभी मान लो कि कोई ब्रांच है जहां 500 करोड़ का फंड बेस है और 1000 करोड़ का नॉन फंड बेस है. नॉन फंड बेस में आपको एलसी चेक करना है, बैंक गारंटी चेक करने हैं, नंबर्स, अमाउंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर हमको क्या क्या देखना है वो भी देखना है ना. तो बिल्स ऑन कलेक्शन का कुछ काम नहीं है. जो हमने नॉन फंड बेस एनएफबी लिमिट्स वाले हैं, तो ये इसको ऐड करना है. तो मान लो कि 500 करोड़ फंड बेस है, 1000 करोड़ नॉन फंड बेस है, तो उसका टोटल क्या बनता है, 1500 करोड़. 1500 करोड़ को 10% लगाओ, 150 करोड़.
अभी आप 150 करोड़ और 10 करोड़ को मैच करो, विच एवर इज लेस दैट इज 10 करोड़। तो 10 करोड़ के ऊपर के जितने भी अकाउंट है वो सब आपको देखने हैं, ना कि सिर्फ देखने हैं, आपको इसमें लिखना है अकाउंट वाइज डिटेल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सैंपल किया था और सैंपल किसी को बोला भी नहीं हमने क्या सैंपल किया था। हम करते थे ना कि अरे वो तो सैंपल में छूट गया होगा, बट हमने किसी को सैंपल दिया था कि हमने क्या देखा है। वो तो जब आता है तब बोलते हैं कि हाँ ये नहीं किया था, ये किया था, काइंड ऑफ। अभी तो ऐसा नहीं चलेगा साहब, लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप इसमें? इसमें अकाउंट वाइज डिटेल लिखना है। और अकाउंट वाइज नहीं, नीचे देखो, नीचे क्या परसेंटेज निकल के आते हैं, आपने कितना चीज देखा है वो भी दिख जाता है यहाँ। तो आप बोलेंगे मैंने 2% देखा और 98% छोड़ दिया, होगा? आई एम नॉट श्योर। तो सबसे पहले आपको ये असर्टेन करना है कि कितना एडवांसेस बनता है, उसमें से कितने एलिजिबल अकाउंट्स आते हैं, उसमें से हम क्या क्या देख रहे हैं वो लिखना है। 10 करोड़ के ऊपर का, या अगर 10% 10 करोड़ के नीचे आता है, 100 करोड़ के नीचे का ब्रांच होगा, तो वो उसका जो 10% निकलेगा वो आएगा। तो क्या वो सब हमने डिटेलिंग किया है? ये जो थ्रेशोल्ड वाले केसेस है विच रिक्वायर्स ट्रांजैक्शन डिटेलिंग, माने उसके ट्रांजैक्शंस देखने, जेन्युइननेस ऑफ क्रेडिट, एंड यूज ऑफ फंड, डाइवर्जन ऑफ फंड, कहां से पैसा आ रहा है, रिकवरी कैसे चल रहा है, बिजनेस का जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देखते थे ना वो पूरा, वो सब इसमें देखना और लिखना है। इसके अंदर अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैलेंस एट द एंड, फंडेड, नॉन फंडेड, टोटल। बैंक गारंटी भी देखने हैं, एलसी भी देखने हैं, बिकॉज मान लो उसका फंडेड 1 करोड़ का है बट नॉन फंडेड 10 करोड़ का है, बिकॉज उसको गारंटी और एलसी ज्यादा चाहिए। तो वो सिनारियो में आपको वो भी लिखना है। और फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने, तो आपको लिख के देना है कि अभी मैंने इतना देखा है। और ये तो बात हुई 10% के ऊपर वाली, ऐसा नहीं है कि 10% के नीचे वाले नहीं देखने हैं। उसके अंदर आपको सिस्टम और कंट्रोल पर्सपेक्टिव देखने हैं। एक और जगह है एलएफआर के अंदर जहां ऐसे बोलते हैं टॉप 5 स्टैंडर्ड अकाउंट को आपको देखना है, टॉप 5 स्टैंडर्ड अकाउंट को। उसके अंदर आपको क्या दिखता है? सी, हर एक जगह पे आपके लिए वो रिंग फेंसिंग हो गया है, and you need to play around with that only. So please think it over once again, recalibrate your strategies कि कैसे करेंगे, जॉब कार्ड्स बनाएंगे और कैसे काम करेंगे। अदरवाइज ये नहीं होगा, and probably we may end up with some kind of issues into this one, right? So this is only for the identification कि कितने अकाउंट्स होने चाहिए मेरे लिए। इश्यू कहाँ मिलेगा हमको? ये एडवांस इसका जो रिपोर्ट हमको मिलता है ना, वो फंड बेस का ही आता है जनरली। तो आपको रिक्वेस्ट करके एनएफबी का रिपोर्ट भी लेना है कि भाई नॉन फंड बेस वाले कितने। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा बोल दीजिए 31 मार्च को कितने एलसीज आउटस्टैंडिंग है और 31 मार्च को कितने गारंटीज आउटस्टैंडिंग है, वो रिपोर्ट निकलता है सिस्टम में से। तो आपके रिक्वायरमेंट के अंदर ये रिपोर्ट्स होने चाहिए। आइडियली इफ पॉसिबल, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट जल्दी आ गया है और आप एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं 31 मार्च के पहले, तो उनको बोल दीजिए कि 31 मार्च को ये रिपोर्ट जनरेट कर दे। बिकॉज जो फॉरेन गारंटीज और फॉरेन एलसीज रहती है ना, उसमें अमाउंट चेंज हो जाती है एनओआर के कारण, नोशनल रेट के कारण। तो शायद आपको बैलेंस शीट के साथ वो रिपोर्ट का फिगर ना मिले, दैट इज द ओनली सिनारियो। सो हो सके तो जो गारंटी और एलसी की रिपोर्ट है वो 31 मार्च को जनरेट करने के लिए बोल दीजिए, हो सके तो। अदरवाइज इट्स ओके, एटलीस्ट यू गेट द नंबर। The second point is that on with respect to the quick mortality in accounts. अभी सीधा पूछ लिया है आपको, पहले भी ये पॉइंट था कि भाई क्यों कोई था तो उसमें बैंक ने क्या किया, वो सब की बात करने की थी उसमें। अभी क्या बोला है? हैव यू कम अक्रॉस केसेस ऑफ क्विक मोर्टालिटी इन अकाउंट्स वेयर द फैसिलिटी बिकेम नॉन ऑपरेट परफॉर्मिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सैंक्शन? तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एनपीए अकाउंट्स, you need to see to it in system as well as in sanction letter what was the sanction date and the disbursement date and whether it falls under the quick mortality account or not. So you can prepare a, लगा दो कि तेरा काम 3 घंटे देता हूं तुझे,
एक 3 घंटे में तुझे ये काम खत्म करना है, जितने भी एनपीए के अकाउंट है उसके सिस्टम में जाके ये देख ले, डॉक्यूमेंट में ये देख ले और बोल दे कि क्विक मोर्टालिटी कोई है या नहीं है, राइट। काम खत्म हो गया, ऑब्जर्वेशन लिख दो, साइड में लगा दो, उसने जो काम किया वो डॉक्यूमेंट बना दो, उसका काम खत्म हो गया, बाकी उसको दूसरा जॉब कार्ड दे दो। तो अदरवाइज काम नहीं होगा, हमको सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा काम, सभी काम एक बंदा करेगा तो वो नहीं पॉसिबल होगा, राइट। तो ये जैसे छोटे छोटे काम है, ये दूसरा काम है, ये एक और बड़ा काम है। और उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, दैट प्लीज प्रिपेयर, अगर आपके पास पेन एंड पेपर रेडी है या सिस्टम चालू है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन, दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। I would request you to prepare an Excel sheet for your auditing. Excel sheet में क्या होना चाहिए, that I am just giving you the example. First 3 columns. First column customer ID, second column account number, third column name of the customer. Fair enough? इतना हो गया। आपको और कॉलम लगाने हैं, टाइप ऑफ फैसिलिटी और वो सब, वो आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी चालू होगा। नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, आपको लिखना है इंटरेस्ट रेट एज पर सिस्टम, इंटरेस्ट रेट एज पर सैंक्शन लेटर। एनी डिफरेंस, तो वो डिफरेंस का कॉलम लगाना है। इज देयर एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो द डिटेल्स। ये सब आपको क्या करना है कि आपको एक अकाउंट का जो आप लिस्टिंग पहले कर लोगे ना, मैं एक आपको सिक्वेंशियली जा रहा हूँ। 10% वाला असर्टेन किया, 10% के बाद आपने अकाउंट कितने देखने हैं वो डिटरमाइन कर दिए, जो बिलो थ्रेशोल्ड वाले हैं उसमें से सैंपलिंग निकाल दिया, वो अकाउंट का लिस्ट आपने वो ये जो एक्सेल में बता रहा हूँ उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद उसके अंदर क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ। वो एक्सेल शीट के अंदर आप लिखो कि इंटरेस्ट रेट सिस्टम में क्या था, तो किसी को बिठा दो कि ये पूरा लिख दे, या रिपोर्ट के अंदर भी आएगा वो चीज, तो वहां से उठा के आप वीलुकअप लगा के रख दो। सैंक्शन लेटर देख लो कि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या क्या बोला है और वो क्या उसमें होना चाहिए। उसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको रेड करके रखो, उसको ध्यान से बाद में देखना। फिर क्या आएगा कि क्या ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, बिकॉज द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन दिस, whether the interest rate is reviewed periodically as per the guideline applicable to floating rate linked to MCLR और EBLR। EBLR के ऊपर मैं आता हूँ, MCLR पे ध्यान रखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं पॉइंट में कि क्या MCLR बेस के ऊपर था तो वो सिस्टम अपडेट कर रही है ये इंटरेस्ट। तो आपको ये भी देखना है कि कितने चेंजेस आए हैं ये अकाउंट में, ये अकाउंट में कितने चेंजेस आए हैं वो देखने के लिए आपको पहले जॉट डाउन करना पड़ेगा सिस्टम में। अभी आप बोलेंगे कि कैसे करना है, राइट, वो कैसे करना है वो हमें आगे, हम जब प्रेजेंटेशन में जाएंगे तब मैं तीनों सिस्टम में कमांड्स बताऊंगा। वो सिस्टम के अंदर के कमांड्स के थ्रू आपको जॉट डाउन करने की इतने इतने डेट के ऊपर ये चेंज आए थे, उसको आपको कंपेयर करना है MCLR कब चेंज हुआ था और क्या वो जो चेंज हुआ है वो दैट इज इन लाइन विद द MCLR चेंज और नॉट। फेयर है ना। उसके अलावा कोई चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो क्या उसका अप्रूवल है या नहीं है, दैट इज सैंक्शन लेटर है या नहीं है। सी देयर इज डिटेल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आप एक्सेल शीट बनाओगे उसमें डिटेल भरोगे, उसका 2 फायदे हैं। एक तो आपका वर्किंग पेपर रेडी हो गया, दूसरा ये दिखाएगा कि आपने सही में काम किया है, बिकॉज यू हैव प्लॉटेड द फिगर्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द सिस्टम। एंड थर्ड पार्ट इज दैट एज अ सीनियर पर्सन यू विल बी रिव्यूइंग ओनली द एक्सेल शीट, और आप सीधा चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सो एक जो हम काफी बार होता है ना कि हम जूनियर लोगों को क्या काम दें, सीनियर क्या काम करे, वो जो वर्क अलोकेशन है ना वो भी बहुत चार्ट आउट करके रखना है, राइट। The point that I was making here is on EBLR. EBLR is a problematic area because external benchmarking rate, let's say the loans are at a reference of a MIBOR. In that scenario, whether system is configured enough to consider the changes in the MIBOR as well on a periodic rest और जो rest के ऊपर उसको revise करना बोला है, that is a difficult situation. Large corporates do take loans, they don't take loan on MCLR because MCLR will have some impact of banks inefficiency with respect to cost of funds. So they say that no, we want to go only with the external benchmarking. If you are ready, we are okay to take a loan. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट का बेंचमार्क लेते हैं, काफी अलग अलग मिलते हैं बेंचमार्किंग। तो वो चेंजेस क्या हुए, तो आपके पास तो वो चेंजेस भी होने चाहिए एज एन ऑडिटर कि कब कब ये चेंज हुआ था और क्या सिस्टम के अंदर वो चेंजेस एडिक्वेटली हुए हैं। अगर आपको EBLR वाला लोन मिला, प्लीज थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन सा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है,
लिस्टेड के ऊपर क्या रेट था वो डेटा लगेगा आपके पास, अदरवाइज यू विल बी इन अ वेरी डीप ट्रबल, बिकॉज काफी जगह पे हमने देखा है कि अपडेट ही नहीं हो रहे हैं, पहले देने के टाइम पे कर दिया, उसके बाद कोई देखता भी नहीं है. So please don't take this at very lightly. I think there is one question is there. If branch is of 52 crore and threshold comes to 5.2 crore and branch has no loan greater than 2 crore, in that case what needs to be done? Sir 2 crore का तो अभी I think नहीं है, 5.2 है और 10 है, अगर नहीं है तो उसमें कुछ नहीं आएगा. 10 करोड़ के ऊपर या 5 करोड़ के ऊपर का कुछ नहीं आता है, बट आपको सैम्पलिंग तो करना ही है, तो वो तो वहां डिटेल लिखना ही है. 10% या 10 करोड़ वाला जो है उसके ऊपर तो 100% चेक करना है, बाकी का आप सैंपल कर सकते हो, बट आप जो भी चेक करते हो वो सब उसमें लिखना है. वो जो मैंने टेबल दिखाया था ना, वो टेबल के अंदर जैसे ही आप डिटेल भरोगे, टोटल एडवांसेस का फिगर भरोगे, तो वो टोटल ऑटोमेटिकली आएगा कि ये कितना परसेंटेज आपने रिव्यू किया. नाउ यू नीड टू टेक अ कॉल दैट व्हाट इज द sample size that you want to take. Ideal scenario is that you should not go below 50%, ideal, but that is my personal opinion. I don't want to say that you also do it in that way, right? So आपका जो एक्सेल शीट है वो ध्यान में रखिए, उसके बाद मैं उसमें काफी सारा चीज ऐड कराऊंगा. जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आप ऐड कीजिए, ये भी ऐड कीजिए, राइट? Okay. Now comes, have you come across cases of frequent renewal or rollover of a short-term loan? If yes, give the detail of such accounts. Reserve Bank of India has categorically clarified now that the maximum period that you can enjoy without review or renewal, whatever is the case may be, is 180 days from the date of expiry. तो आपको उसके अंदर जो करना है वो करो, बट अगर आपको ऐसा दिखता है कि कोई अकाउंट के अंदर शॉर्ट रिन्यू करके 180 दिन का वो बेनिफिट ले रहे हैं, सो प्लीज रिपोर्ट इट इन सच केसेस इनटू LFAR. उसको मत रहने दीजिए. ऐसे एक बैंक के अंदर मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड ने मुझे फोन किया था, बैंक का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा. 6 साल तक बैलेंस शीट लिए बगैर सिर्फ रिव्यू ही करते हैं, और एक अकाउंट नहीं, पूरी ब्रांच में ऑलमोस्ट सब अकाउंट्स ऐसे हैं, बैलेंस शीट लेने का ही नहीं, रिव्यू ही करने का. और बोलते थे, बिकॉज आगे की गाइडलाइन क्या बोलती थी जो पहले था कि रिव्यू किया है उसके बाद मैक्सिमम 180 डेज तक रह सकते हैं, तो रिव्यू किया, फिर और रिव्यू किया, फिर और रिव्यू किया, फिर और रिव्यू किया, रिन्यूअल ही नहीं हुए अकाउंट. तो ऐसा तो नहीं चल सकता. इट हैज टू बी मार्क्ड दैट अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मार्क्ड एज NPA. वो टाइम पे वो बैंक वो गाइडलाइन जो तरफ से आपको उसको इंटरप्रेट करना था वो दिखा दे रही थी, अभी तो बहुत क्लियरली आ गया है. So please understand that gone are the days where even the bankers used to interpret in their own way or the convenient way. The best part is that I'll tell you, because see हम ब्रांच लेवल पे रहते हैं तो काफी सारा चीज पता नहीं चलता है ऊपर क्या हो रहा है. वही बैंकर्स काफी बार है ना, RBI जब आती है ना तब बोल देते हैं हाँ नहीं सर आपकी बात बराबर है, वो NPA होना चाहिए. आपके लिए आपके पास कितना सारा झगड़ा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है. ऊपर जाके स्टैंड काफी बार चेंज हो गए हैं, और उसके कारण क्या होता है, डाइवर्जेंसीज आते हैं तो क्या आता है कि RBI का आपके पास लेटर आता है कि भैया आप एज एन ऑडिटर आपने क्या देखा इसके अंदर, राइट? सो समझिए, आप इंडिपेंडेंटली गाइडलाइन को समझिए, आप इंडिपेंडेंटली उसको प्रेजेंट कीजिए केस को, राइट? और हो सके तो आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो बैंक के, उससे भी बात कीजिए. दैट auditor will also guide you. It is not easy for central statutory auditor to override your MOCs unless you have made a mistake, और वो grave mistake है या कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो ही हो सकता है. बाकी कोई ऑडिटर के पास सर इतना टाइम नहीं है कि वो अपना भी काम करे और आपका काम को वो कैंसिल करके वो उसको बैंक को करे. ऐसा किसी के पास सर टाइम भी नहीं है, कोई करता भी नहीं है. हाँ, अनलेस आपका बहुत ग्रेव मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए, या फैक्ट अलग है और आप फिर भी आपने MOC दिया है, कुछ ऐसा है तो रेयर केसेस में होता है. इट्स नॉट दैट ऑफ अ रूटीन नेचर. देन कम्स वेदर वैलिड क्रेडिट रेटिंग इफ अवेलेबल. तो सिस्टम में अपडेट हुआ है. दिस इज वेयर आई फाइंड लॉट ऑफ इश्यूज. क्रेडिट रेटिंग जनरली कैपिटल एडिक्वेसी वाला जो
करते हैं, जो बेसल का वर्किंग रहता है बेसल के हिसाब से। सीबीएस के अंदर मैंने बहुत कम जगह पे देखा है, अगर हुआ है तो चेक कर लीजिए कि लेटेस्ट रिपोर्ट के कारण हुआ है ना, ऐसा ना हो कि 3-4 साल पहले एक लिया था क्रेडिट रेटिंग, उसमें एक अच्छा रेटिंग था तो वो लगा दिया, बाकी फिर डिटीरिएट होने लगे तो अपडेट ही नहीं किया। So please ensure that part as well. So what you need to do, prepare a job card, credit rating जहां जहां एप्लीकेबल है जो अकाउंट को, उतने अकाउंट का लिस्ट निकाल दो, उसमें 5 करोड़ या कोई थ्रेशोल्ड रहता है, बैंक वाइज रहता है, राइट। मल्टीपल बैंकिंग वाले में रहेगा, कंसोर्शियम में ये सब रहेगा, और चेक कर लो कि सिस्टम में है या नहीं है। काम खत्म करो, एक एक को जॉब कार्ड बना के काम खत्म करते जाओ, लिखते जाओ और उसके डॉक्यूमेंट बनाते जाओ। सो मैंने जो अभी टेबल बनाया ना, वो टेबल आपके पास है, उसमें डिटेल भी लिखा हुआ है, तो आपको जॉब कार्ड भी पता चल जाएगा भाई एलएफआर का पॉइंट नंबर 5 एडवांसेस में ये पॉइंट नंबर है, उसमें ये देखना है, इतने इतने कितने अकाउंट हुए, तो वो अकाउंट आपको मैन्युअली फीड करने हैं। आप एक्सेल का टेम्पलेट बनाओ, आपने क्या देखा वो डाल दो और आपका ऑब्जर्वेशन डाल दो, प्रिंट करके लगा के रख दो, या प्रिंट नहीं करना है तो फाइल बना के रख दो, काम खत्म। तो आपका एक एलएफआर का काम हो गया। अभी ये इंडिपेंडेंटली काम भी हो सकता है, इसके लिए कोई कनेक्टेड नहीं है कोई चीज। Did the bank provide loan to companies for buyback of shares in security? Most dangerous point. You will not find any clue into this one. You need to work a lot into this one, because what will happen is that अगर आप अप्रैल में जाते हैं, आपको बैलेंस शीट मिलेगा वो मार्च 21 का मिलेगा। मार्च 21 से अभी तक में अगर कोई चेंज आया है या बायबैक आया है, अभी तो प्राइवेट कंपनीज भी बायबैक करती है। सो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि भाई आपको कैसे इंफॉर्मेशन पता चलेगी? तो आपके पास अनलिमिटेड सोर्सेस है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो 100% चीज आपको वर्क करेगी, बट आपको देखना है बड़ी कंपनीज एटलीस्ट जो है, या जहां नए अकाउंट्स खुले हैं डिविडेंड के लिए या बायबैक के लिए सेपरेट अकाउंट जो खोलना रहता है वो हुआ है, या उनके करंट अकाउंट में आपको दिखता है कि शेयर होल्डर का कुछ पेमेंट है, कुछ भी कहीं से भी कुछ क्लू आता है, तो वो देखिए कि कहाँ उसमें ओडीसीसी फैसिलिटी यूज नहीं हुए हैं, वो देखना है। और एक और चीज आपको एमआर तो लेना ही लेना है इसमें, कि भाई आप बताओ कि कितने केसेस में बायबैक हुए हैं आपके जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स है उसमें, राइट, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगेन अ डाइसी पॉइंट, इज द डीपी कंप्यूटेड प्रॉपरली? नाउ व्हाट विल यू से? क्रेडिटर को रिड्यूस करने में भी झगड़े रहते हैं कि करे ना करे, क्या करे, राइट। तो अपना इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि हाँ, क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस, बिकॉज आप एक्चुअल डेटर लेते हो, आप एक्चुअल स्टॉक लेते हो, और क्रेडिटर आपने बोला कि मैं सीए में डेटा के ऊपर वो जो मैंने असेस किया था उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल गैप, ऐसा तो नहीं हो सकता। व्हेन यू आर टेकिंग एक्चुअल एट 2 places, you need to take actual at this place as well, राइट। और आई थिंक आरबीआई का एक 80s के ईयर में गाइडलाइन था, वो भी है। So please read that part on guidance note as well, and you need to mention these part into this one, that क्या डीपी सही कंप्यूट हुआ है। डीपी के अंदर मार्जिन का भी इश्यू देखने में आया है। करते क्या है, काफी बार मार्जिन चेंज कर देते हैं कंप्यूटेशन में। तो आपको जब स्टॉक स्टेटमेंट आप रिव्यू करते हैं ना, तो हो सके तो एक कस्टमर के सब एक साथ देख लो, उससे फायदा क्या, ऐसे मंथ वाइज मत जाओ, एक बोरोवर के सब स्टॉक स्टेटमेंट अगर होते हैं ना, तो वो देख लो, तो आपको एक परसेंटेज पता चल जाएगा कि भाई कितना मार्जिन लगाता है, अगर मार्जिन में कुछ प्ले अराउंड किया है कि नहीं किया है, राइट। सो यू कैन डू इट दैट वे एज वेल। नाउ दिस वाज द पॉइंट दैट आई वाज रेफरिंग टू। कमेंट ऑन एडवर्स फीचर्स considered significant in top 5 standard large advances and which need management attention. Now understand this one, it has a far reaching implication. Reason, आपको स्टैंडर्ड असेट बोला है, तो माने आपको काफी बार ऐसे डाइसी अकाउंट दिखते हैं ना जो अभी स्टैंडर्ड रखे हैं, बट उसमें काफी सारे आपको वीकनेसेस दिखते हैं। सब कुछ लिख दो यहाँ कि इतने वीकनेसेस लगते हैं जो प्रॉब्लम कर सकता है। ये आप हमने सब अभी कोविड में तो काफी लोगों ने देखा, काफी लोग तो आधे डॉक्टर भी हो गए कि भाई सीटी स्कोर क्या आता है, कितना प्रॉब्लम है, कौन सी दवाई देना है, इसको स्टीरॉइड देना है नहीं देना है, वो सबको पता चल गया है, राइट। तो आपको लगता है कि ये केस डिटीरिएट हो गए, आईसीयू में जाएगा या वेंटिलेटर पे जाएगा, तो पहले ही लिख दो कि इतने इतने इश्यूज है, जो मटेरियल है, एडवर्स फीचर है फॉर अ टॉप 5 लार्ज एडवांसेस। तो आपको थ्रेशोल्ड वाला तो निकालना ही है, टॉप 5 लार्ज भी निकालना है, राइट।
तो वो दोनों आप निकाल के उसके अंदर आपको डिटेल स्क्रूटिनी करना है डॉक्यूमेंट का एज वेल एज ट्रांजैक्शन का। Here's the plan identity. Yes sir. छोटा सा इशू है ये वैल्यूएशन के ऊपर। Yes sir. क्योंकि एक स्टॉक टेकिंग मैंने ऑब्जर्व किया था कि अप्रैल से लेके मार्च तक मोस्ट ऑफ द आइटम सिमिलर क्वांटिटी एंड सिमिलर प्राइस था। सेकेंडली वो बोरोवर ये नहीं बताता कि उन्होंने एमआरपी पे लिया है या कॉस्ट पे लिया है। ये बहुत इशू आता है जिसकी वजह डीपी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमको आती है सामने। इसका क्या करें? हाँ, उसका मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ दोस पॉइंट्स। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी नीड टू पुट द ओनर्स ऑन टू द बैंक फर्स्ट। कैसे? तो सबसे पहले बोलना है कि आपने जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया है, एटलीस्ट जो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। पीरियोडिक इंस्पेक्शन इज साइलेंट ऑन टू दीज एस्पेक्ट, जो सर आपने बताया वो तो उनके ऊपर ओनर्स डाल देना है। एज फार एज योर पॉइंट इज कंसर्न दैट के स्टॉक क्वांटिटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, देन यू नीड टू पुट फॉर द पॉइंट एज एन क्वेरी फर्स्ट टू द बैंक that I believe that by reading this stock statement that these are the old stock, that is dead stock जैसा है, और 120 या जो भी दिन उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, I won't consider it for the DP. Provide us the document whereby opening in purchases, consumption and closing is appearing. Most of the time probably you won't find it, right? But in that scenario, if you don't find it, mention it as a negative remark into this one. Don't know. In following cases, we observe these observations. However, see, point क्या होगा कि दूसरा immediate question आपको ये आएगा कि आपने एक negative तो लिख दिया, but उसका impact क्यों नहीं लिखा, उसका NPA क्यों नहीं किया? तो उसके लिए भी आपको justify करना है कि मैंने information मांगा, but without having adequate information, I can't make that account as NPA or I can't test it for an NPA. So for the purpose of asset classification, we requested the bank for XYZ details to be obtained from the borrower, but bank did not provide, hence we are not in a position to confirm. So disclaim करना है that we are not in a position to quantify that. But आपने जो issues बोले वो issues इसके अंदर आने चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा कि हम ऐसे डीपी बराबर है ऐसा लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, डीपी बराबर नहीं है। और एक इशू मैंने और नोटिस किया है कि कई बोरोवर्स जो लार्ज बोरोवर्स हैं वो अपनी एक कोई सीए फर्म से उसकी स्टॉक टेकिंग करवा लेते हैं और बैंक को वो सबमिट कर देते हैं। अब बेसिकली बिकॉज इट्स ए प्रोफेशनल कोलीग वी हैव टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू। बट मैंने उनको 1-2 बैंक में बोला कि भैया बैंकर्स उनको रिकॉग्नाइज कर दो कि हाँ जी इस आदमी से करवा लो आप, वो मिसिंग होता है। आइडियली आप सी बैंक में 2 रिक्वायरमेंट आते हैं कि आपका जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट रहता है ना, क्वार्टर एंड वाला, उसमें एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उन्होंने अपॉइंट किया है उसका सर्टिफाइड लगता है। दैट इज वन रिक्वायरमेंट। सेकंड इज द स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट एक्चुअली बैंक के एम्पनल्ड ऑडिटर से होता है, राइट? तो बैंक इंटरनली अपने जो एम्पनल्ड मेंबर्स जो रहते हैं, फर्म्स रहते हैं, उससे कराती है। तो अगर एम्पनल्ड से नहीं करा है तो आपका पॉइंट वैलिड है और आपको लिखना है। और एक मैंने सब कुछ यहाँ इंक्लूड नहीं किया एलएफएआर का, बट एक स्टॉक ऑडिट का भी पॉइंट है, तो उसके अंदर हमको लिखना है कि इसके अंदर स्टॉक ऑडिट बैंक के एम्पनल्ड से नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो इट हैज टू बी डन इंडिपेंडेंटली एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। वो लोन पॉलिसी में मिलेगा हमको, राइट? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड एक 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, Q&A में आए हैं। Anonymous attendee. Okay. What is the threshold limit of advances for external credit rating? As far as I know, it is 5 crore, but I need to check. I don't remember. But secondly, you need to check the bank's loan policy. Loan policy would have that particular aspect of that which accounts are required to be externally credit rated. Please check that aspect. Raj ji has a question, sir. If sanction letter is silent on reducing creditor from stock, should we still reduce the stock from? Sir, it is not about sanction letter. It is about arriving at the working capital, right? So you need to work it in that manner, whether they say that or not, and then there is a problem in the sanction letter itself. I would say that you mention into your documentation part as well. राइट? बिकॉज आप क्या फंडिंग कर रहे हो? आप अकेला सिर्फ स्टॉक और बुक डेट ही फंडिंग करोगे, ये साइड क्रेडिटर बढ़ते ही जा रहा है, वर्किंग कैपिटल गैप ही नेगेटिव हो रहा है, और फिर भी आप फंडिंग करते हो। दैट इज नॉट द वे इन विच बैंक शुड फंक्शन।
Right. So first and the foremost thing is that if sanction letter is silent on this process, whereas something is mentioned, then you need to mention that aspect into documentation. Second part is that you need to follow the process that is prescribed. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर आप गाइडेंस नोट में एक बार देखिए. For ECR is RBI circular prevail over bank circular, as bank circular says up to crore there is no requirement of ECR. Sir, RBI will give you the outer guideline. Let's say RBI ने बोला 5 करोड़, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और बैंक बोल सकता है 1 करोड़, तो बैंक का गाइडलाइन आपको लेना है, बट बैंक कैन नॉट से कि 5 करोड़ आरबीआई ने बोला मैं 25 करोड़ करूंगा. राइट. क्यों ले रहे हैं बैंक पहले वाले? बिकॉज उनको पता चलता है कि क्रेडिट रेटिंग अगर डिटीरिएट हो रहा है तो उनके कॉस्ट उनको इंक्रीज करते हैं, रिस्क बढ़ रहा है, तो दे आल्सो चेंजेस टू द ट्यून ऑफ दैट वन, एंड दैट इज व्हाट द गाइडलाइन से. आरबीआई ने बोला 25. हाँ सर, फेयर इनफ. इफ इट इज आरबीआई गाइडलाइन इज ऑफ 25 CR, then up to 25 CR bank may say that we don't want it, above that we want it. Right. I think Rajiv ji want to say something. Rajesh ji, आप I think उन्होंने hand raise किया था. No, I think by mistake. No, sir. I don't want to say anything. Yeah. Okay. I'm just listening you, sir. No. Sir, Rajiv ji को I think बात करना है. अच्छा, राजीव जी को. Okay. Just check. No, nobody raised the hand, sir. Nobody. I'm not sure. Yeah, I think Yes, Rajiv Bansal ji raised the hand. Yeah. Okay, Rajiv ji speaking. Please speak. Rajiv ji, ask your question. Unmute करके sir, आप muted हो, unmute करो. Okay. Sir, my question is, as per RBI circular, ECR is required up to above 7.5 crore. Earlier 5 crore. But some bank says up to 25 crore, there is no requirement in that particular bank. No. Then I won't agree with that part. At least I won't agree. But let me check that once again, ECR part. Sir, I also explain the bank. Some banks like PNB bank says 25 crore, there is no requirement of ECR. No, sir. I need to check on that aspect because I don't have immediately, I'm not able to recollect immediately, but that can't happen. If RBI stated something, it is the outer boundary that you have. You can't have it beyond that one as a bank. That's not possible. But again, I need to check before commenting anything finally. I need to check. Because we are doing the audit in some banks for last 10 years. I find the circulars from bank. For different banks, up to 10 crore, up to 25 crore, there is no internal circular of the bank. There are two credit rating, internally also rated and externally rated. Externally rated, sir. Externally rated. But I need to check, get hold of that circular first of RBI. Without referring to, I cannot say anything on a concrete. Okay, sir. But एक चीज मैं बोल सकता हूँ, आप हो सके तो गाइडेंस नोट में चेक कर लीजिए. गाइडेंस नोट में उसके ऊपर कुछ. सर, मैंने बैंक का सर्कुलर प्लस आरबीआई सर्कुलर दोनों स्टडी किए हैं. उसमें अर्लियर था 5 करोड़, अब है 7.5 करोड़, और बैंक सर्कुलर बोलते हैं 25 करोड़. I think 2 participants have raised hand, so probably they want to also contribute into this one. हेलो सुनील जी. हाँ जी, आपका भी किया है ये अनम्यूट. हेलो. हाँ जी सुनील जी. जी सर एक्चुअली ना जिसमें बैंक्स वो 5 करोड़ से ऊपर वाले को और अप टू 25 करोड़ लेते हैं, उसमें मेनी टाइम्स दे टेक द बोरो एडवांसेस एज. हेलो, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है. हाँ सर, मेरा इसी में ही था, ईसीआर से रिलेटेड. मेनी टाइम्स जो बैंक्स इसको ईसीआर को अप टू 25 करोड़ लेते हैं, तो वो लोग अपनी गाइडलाइन में उसको ऐसा लिखते हैं कि इट शुड बी टेकन एज अनरेटेड अप टू 25 करोड़. सर, अनरेटेड लेना, अनरेटेड और आपने क्रेडिट रेटिंग लिया है और अनरेटेड लिखना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. नो सर, their guideline, their internal loan document says, loan guideline says that up to 25 crore, if the borrower is not providing the
external credit rating, there is no requirement, and treat it as unrated. Okay. Frankly speaking, currently I'm not able to recollect entire this credit rating part. I am trying to search through guidance note as well, but not able to immediately recollect where it is prescribed. So give me some time, or probably you can mark me an email. I'll come back to you. Yeah, so this problem is I am also facing since last 3 years, and I am also not able to clarify that point in the branches. It is very much I've requested that if it possible, you can make a short note and send to the Jindal sir. He can share with us all participants. Fair enough. Give me some time. Let me go through this issue in detail. I'm not in a position to identify it. I have the guidance note as well, but would not be in a position to immediately take care of that one. Okay, Kuntal bhai. Just making note of it. I'll try and compile some information on it. Yeah. तो जिसमें एक्सटर्नल रेटिंग नहीं है वो अनरेटेड हो जाएंगे, बस यही होगा ना। वो नहीं सर, क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई गाइडलाइन बोल रही है 7.5 करोड़ का, बैंक बोल रहे हैं 25 करोड़ का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। यू कैन नॉट हैव योर गाइडलाइन लेवल पे, तो गलती नहीं हो सकती ना। ईसीआर उनकी पॉलिसी बनी है कि 25 करोड़ तक करवाए, क्योंकि वो फोर्स नहीं करते 7.5 करोड़ वाला जो क्लाइंट है उसको भी करे। बट आरबीआई ये कह रहा है कि आप रेटिंग कराओ, इट शुड बी एक्सटर्नली क्रेडिट रेटेड। तो वो अगर ईसीआर नहीं कराते तो क्रेडिट रेटिंग में, कैपिटल एडिक्वेसी में वो अनरेटेड के अंडर दे देते हैं उसको। That is but I just need to get hold of the RBI guideline where it is mandated or it is suggested. That is what I want to see. Yes. Yeah. So that's the only case that I want to see, but I am not in a position to. उसमें सजेस्टेड ही है, क्योंकि 25 करोड़ के ऊपर मैंडेटेड है। See, if it is a suggestive nature, then bank can have their internal policy, risk-based policy as well. Because अपनी policy बंदा वो इतना खर्चा ही नहीं कर पाएगा सर। Yes, this is what is the logic behind it. Yeah. And so that is why I need to check. तो कुंतल जी, हर बैंक की ना अपनी अलग-अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। Right. So that means it must be suggested by the Reserve Bank of India. So that is just, I wanted to confirm that whether RBI suggested it or RBI has mandated it. So in case of suggestion, that bank can take a call. That's perfectly fine. चलें सर, आगे चलें कुंतल भाई। Okay. So now this point is a bit dangerous one, and probably our next set of discussion would be on this aspect only, NPA part. It says that as the branch identified and classified advances into standard, substandard, doubtful, loss through the computer system without manual intervention, it becomes extremely difficult for us as a branch auditor to ascertain whether the system was compromised or manual intervention was there or not. So the process would be a bit difficult, bit tricky as well, whereby we need to ascertain whether the accounts have been correctly classified first. If the accounts have not been correctly classified, whether there is any issue with the system itself, and then we need to ascertain whether it is because of manual intervention or the other way around. It is very easier said than done. It's very easy to say this kind of thing here by speaking it. It's very difficult in certain point, especially for the branch auditors. For central auditors, they do have some additional access available as well, and they can get a hold with the IT team as well. With the limited time, limited resources at the branch level, it is most challenging part. Right, but what we need to do is we need to tag or we need to track the transactions or the events which might end up with incorrect identification of NPA, right? So please understand this one. Secondly, again an MR letter, you need to ask the bank as a branch to the branch management, give us the list of scenarios or the cases where the manual intervention has taken place. Please have that confirmation available.
Please have that confirmation available. If you don't have that confirmation available, it will be very difficult for us to justify that what you have been provided with. Bankers may say that we हमने तो दे दिया था सब कुछ, उन्होंने पूछा नहीं तो मैं कैसे दूं, राइट? सो ऐसा मत करना, ध्यान रखना कि वो बराबर से हो। कुंतल जी, एक इश्यू मेरे पास और आया था। हाँ, कि एक किसी में, I will not name the state, they had given a special, they gave a special scheme that a particular section will be funded by the banks. और उसके अंदर क्या था कि मिस्टर ए ने गारंटी दी मिस्टर बी की, मिस्टर बी ने दी सी की, सी ने डी की, डी ने ए की। वो घूम फिर के वही आ गया। तो मैंने उनको बोला these are unsecured, and they started arguing with me that they are backed by the government, ये वो। हालांकि they did not produce any document, and I mentioned it as an NPA and bad loans. तो उस स्टेज में क्या किया जाए इसके अंदर? Because they fight with you, the bankers as well as. Sir, that is very common now. बिकॉज आप एमओसी की बात करो या आप ये लिखने की बात करो तो वो सीधा फाइट करेंगे, सीधा यही बोल रहे हैं कि एलएफआर के अंदर लिखो, मेन ऑडिट में मत लिखो, और काइंड ऑफ थिंग, लॉट ऑफ थिंग्स डू हैपन, राइट? आई वुड से दैट यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द सेंट्रल ऑडिटर फर्स्ट, वो एक चीज है। You explain your point, but before doing that, you make an entire exhaustive note onto it. What is the issue that you have looked into? What are the other aspects or the practical aspect that you have looked into? काफी बार क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक ब्रांच, सेगमेंट या रीजन में ही स्पेसिफिक रहता है। तो सेंट्रल ऑफिस लेवल पे, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर के मटीरियलिटी लेवल में शायद वो ना आए, हो सकता है ऐसा, राइट? सो यू नीड टू मेक देम अवेयर। Second part is that as far as the reporting part is concerned, जब भी आप guarantee की बात करें, when they say that there is a guarantee available, so and so, ask for the document or the scheme document or the government resolution whereby it is stated that it is backed by government guarantee. Secondly, as far as NPA part is concerned, only central government guarantee is having some benefit. No state government has a benefit available as per the IRA guidelines. So वो guarantee है, that's it. उसके आगे कुछ नहीं। उसमें प्रॉब्लम ये भी थी that there were certain terms and conditions for claiming the stake with the central government, वो भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया हुआ था। नहीं सर, आप गारंटी लेते हो तो आपको कंप्लायंस नहीं होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गारंटी। उसके अंदर था कि within 6 months you have to claim with the central government, राइट? 2 साल से चल रहा था, किसी ने पूछा ही नहीं था, पहले ऑडिटर ने भी नहीं देखा था। नहीं, then they will reject the claim. That is because you are not, unless you bring us a letter stating by central government that हम आपको condone करते हैं और आप लेके आओ तो मेरा गारंटी वैलिड है, वो तो थोड़ी देगा कोई, और वो आया तो ही बात है। और प्रीवियस ऑडिटर का क्या करें, उन्होंने देखा ही नहीं इस चीज को। अरे इट्स ओके सर, वो लेट्स नॉट enter into that one because that becomes difficult for us ना, because it reflects on the past audit. एग्जैक्टली तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, बैंक भी ये बोलते हैं आगे वाले ने कुछ नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो, काइंड ऑफ। बट अभी ऐसे कभी भी कुछ बात आए ना तो आप उसको अलग तरीके से हैंडल ऐसे करना है कि दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। अरे सर ये भी एक बाकी रह गया, अरे सर ये भी रह गया, राइट? इट्स ऑल द ट्रिक ऑफ ट्रेड, राइट? ओके, SMA 0, 1, 2 को भी करेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं, नाउ अंडरस्टैंड। हम अभी तक तो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस के ऊपर बात करें, अभी तो SMA भी है। अभी SMA सिस्टम के अंदर करेक्ट क्लासिफाई हुआ है कि नहीं वो भी देखना है, राइट? सो पॉइंट ये है कि एट टू व्हाट एक्सटेंट यू विल गो एंड हाउ विल यू गो। रादर आपको दिख तो रहा है LFR में ये करना है, बट आप कुछ भी आंसर लिखो ना, पहले 4 बार सोचना कि आपने सही में ये काम किया है उसके लिए, अदरवाइज मत लिखना, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बिकॉज अभी बहुत सारा सिस्टम ड्रिवन, अभी मान लीजिए एक मैं चीज बताता हूँ, SMA क्रिलिक करके सिस्टम है 5 करोड़ के ऊपर के एडवांसेस के लिए, राइट? मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, कंसोर्शियम है या 5 करोड़ के ऊपर है, उसके अंदर हर महीने डिटेल जाता है, हर बैंक से जाता है। अभी गलती से भी आपके बैंक ने SMA 2 डाल दिया जब वो SMA है ही नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से, अभी उसका इम्पैक्ट दूसरे बैंक के ऊपर क्या आएगा? जस्ट इमेजिन, एवोक क्रिएट हो जाएगा, उसका रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क शुरू करने का काम शुरू हो जाएगा। और अगर आपने नहीं डाला और दूसरे कोई बैंक ने डाला तो वो आपकी बैंक के ऊपर प्रॉब्लम आएगा कि आपको देखना कि ये अभी मरने वाला है। दैट इज बिकॉज सम अदर बैंक हैज स्टार्टेड रिपोर्टिंग इट, तो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को इनिशिएट करने का काम शुरू करो, राइट? सो सी, these are the very powerful systems now available where the data sharing is almost on a real time basis.
राइट सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ राइट साइड के ऊपर मैंने जो लास्ट गाइडलाइन में ऐसा था कि एसएमए में साइन ऑफ स्ट्रेस के ऊपर भी एसएमए था, अभी वो हटा के सिर्फ ओवरड्यू के ऊपर कर दिया है, बट दीज आर वेरी वैलिड साइन ऑफ स्ट्रेस, राइट। डीले इन स्टॉक स्टेटमेंट, क्यों डीले कर रहे हैं, अभी सब कुछ उसको आपको सीबीएस से मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन तो बहुत फैंसी कर रहे हैं बट पहुंच ही नहीं पा रहे हैं प्रोजेक्शन तक, राइट। सो ऐसे राइट साइड के ऊपर आप देखोगे डिवॉल्वमेंट है, थर्ड रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, काइंड ऑफ from the earlier guidelines, but a very valid one is on date as well. CCEOD के लिए SMA 1 और 2 overdue 3160 and 6190 है, वो क्या सही हुआ है कि नहीं। अपग्रेडेशन जो हमने बात किया, तो आपको एक ही काम करना है, जितने भी अपग्रेड हुए हैं मैंने जो आपको बताया कि आप अपग्रेड में साथ में देख लीजिए कि अपग्रेड एक भी ओवरड्यू छोड़ के नहीं किया है, ओवरड्यू रिकवर्ड है एंड देन अपग्रेड है, राइट। Here, this is with respect to non-performing asset and obtaining valuation report from approved valuer for immovable property charged to the bank once in a 3 year. If it is not obtained, तो एक जॉब कार्ड बना दो, एक इंटरनल बंदे को बोल दो जितने एनपी अकाउंट है वो सबके वैल्यूएशन रिपोर्ट फटाफट देख ले, जिसमें नहीं है उसमें लिख दे। काफी रिपोर्ट तो ऐसे ही आते हैं बैंक के जिसके अंदर लास्ट वैल्यूएशन डेट भी आती है, बट आपको कंफर्म करना है उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट लिया है और डेट अपडेट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये काम खत्म कर दो, इतने केसेस में नहीं हुआ है। अनलेस आपको ऐसा लगता है कि कोई बोरोवर में सिक्योरिटी दिख रही है, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ा है जिसका आपने सिक्योरिटी बोला है बट भले ही झगड़े में है, राइट, बट अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वो बिल्डिंग को तोड़ दो, तो इन दैट सिनेरियो कैन नॉट से दैट कि अरे मेरा वैल्यूएशन रिपोर्ट 2 साल पहले का था उसमें बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग ही नहीं रहेगा साहब अभी तो कहाँ का वैल्यूएशन रहेगा। तो उसके अंदर नीचे दिया है अनलेस द सर्कमस्टेंसेस वारंटेड शॉर्टर ड्यूरेशन, so in that scenario you need to mention those facts as well. Whether in cases concluded the recovery have been properly appropriated against the principal and interest as per policy of the bank. So first and the foremost thing is that what you need to review is NPA policy of the bank as well as the loan policy of the bank. Loan policy के अंदर ये लिखा रहेगा कि कौन से मेथड में आपको रिकवरी करने हैं। जनरली ये सीक्वेंस रहता है चार्जेस, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो जो भी 1000 रुपए लेट से अमाउंट आए तो उसके सबसे पहले किसको नॉक ऑफ करना है वो एक आएगा, एंड उसके बाद ये वेदर द सेम इज बीइंग फॉलोड इन द सिस्टम एज वेल और नॉट। This is with respect to automatic renewal on FCNR deposit, with whether such deposits have been renewed, auto-renewed. Report the branch has satisfied itself that the customer is still a non-resident. A very important point, only for those branches where FCNR is there. ये point क्या बताना चाहता है कि आप FCNR जो non-resident को offer करते हो, अगर आप ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे रखोगे और ऑटोमेटिकली वो एफडी रिन्यू हो जाएगा, तब आपको बाद में पता चलता है कि अरे ये बंदा तो अभी रेसिडेंट हो गया है, तो हाउ कैन होल्ड एफसीएनआर। तो क्या बोलते हैं कि एफसीएनआर को आप ऑटो रिन्यूअल मोड पे नहीं रख सकते, एफसीएनआर को आपको ऑटो क्लोजर मोड पे ही रखना है, और हर एक बार एफसीएनआर भी डिपॉजिट खुलती है तो आपको रिकन्फर्म करना है कि उसका नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस है। Right, excellent point. The problem is, as a statutory auditor, will we be getting this much of time? Rather, I would say that this should be forming part of concurrent audit. Apt point. That is, see, I literally salute the person who has included this part. See, there are a lot of, not only this part, there are a lot of other part as well where the guidelines are pretty specific. But sadly, the implementation part at the bank level is very low, or probably review part is very low. I think 2 persons have raised hands, sir. They have not mentioned anything on chat or Q&A. You can take call whether to allow them to speak or how do you want. I think now they have lowered the hand. Okay. In the branch complying, is the branch complying with the regulations on minimum average balance? Again, I find it, point is excellent, but misfit for the statutory auditor as such. But fair enough, if it's a part of process to be carried out, we need to carry out. There is a specific guideline issued by Reserve Bank of India on collection of charges for minimum balance, non-maintenance of minimum balance. We need to follow that as well. It requires communication with the customer that you have not maintained the minimum balance and kind of thing.
right? So just follow that part into this. So I finished off this part. If any questions are there, you can just ask me, or I'll go back to the other part of the session. Meanwhile, you can post your question as well. Yeah, Anurag ji would like to speak too, I think. यस यस यस, अनुराग जी बात कीजिएगा, अनुराग जी अनम्यूट करके बात कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा अनुराग जी। यस सर हमारे सब आ रही है आवाज अब? जी जी जी। सर नॉर्मली जो एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं ना शॉर्ट टर्म हाँ। क्रॉप्स के, तो उसमें हाँ। 2 क्रॉप सीजन्स का बड़ा इशू आता है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आप दे सकते हैं? सर उसमें सीजन हार्वेस्टिंग पीरियड तक का आपको मिलेगा, राइट? अभी क्रॉप सीजन है ना, वो क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेप्ट 2-3 क्रॉप्स वेयर एसएलबीसी गाइडलाइन में वो डिफरेंस रहता है। एक शुगर केन का इश्यू है, शुगर केन को शॉर्ट में गिने लॉन्ग में गिने, वो एक इश्यू रहता है। कोई कुछ स्टेट्स ऐसे कहते हैं वो शॉर्ट में है, कोई कहते हैं लॉन्ग में है, वो 1-2 कमोडिटी। बाकी एसएलबीसी गाइडलाइन के हिसाब से क्रॉप सीजन आप क्रॉप कौन सा है ना उसके ऊपर के कर सकते हैं। बट ये आसान है बताने का। नो एक मिनट सर, ये आसान है बताने का, बट प्रॉब्लम क्या होता है, बैंक्स ऐसा अपडेट करते हैं मिक्स क्रॉप। अभी मिक्स क्रॉप बोलेंगे तो आपको शॉर्ट में जाना है, लॉन्ग में जाना है, यू डोंट नो। सेकेंडली, सिस्टम्स आर नॉट केपेबल इनफ टू कंसिडर क्रॉप इनटू दिस एनपीए। तो मैं, आपने पूछा इसीलिए मैं अभी स्पेसिफिकली बताता हूं कि आपको एक एरिया ऐसा मिलेगा जहां सिस्टम सेटअप नहीं है। पॉसिबली आपको यहाँ एक 100% हिट मिलेगा कि क्रॉप का जो एग्रीकल्चर जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम में नहीं है, राइट? फॉर क्रॉप सीजन आई थिंक इसमें गाइडेंस नोट में ये साल में या 2 साल पहले एक टेबल दिया हुआ था। वो टेबल के अंदर ये दिया हुआ था कि क्रॉप सीजन कैसे गिनना है। जस्ट अ मिनट, सर वो टेबल मैंने देखा है। ओके। तो लेकिन इसमें इशू ये आता है कि जब हम प्रैक्टिकली बैंक में वर्किंग में जाते हैं ना, हाँ। तो वो टेबल पे जैसे पहले 1 साल लेके बाद में 6-6 महीने का जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है, नॉर्मली वीट और पैडी की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो उसमें वो कहते हैं कि हम 6 मतलब कि जो 1 साल तो पहले वो लेते हैं कि ओवरड्यू हो गया, क्योंकि 6 महीने का हार्वेस्ट सीजन हो गया, जो रोपिंग से हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, और 6 महीने का मार्केटिंग सीजन लेते हैं। सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो रिवाइज अभी जो 2022 का गाइडेंस नोट आया ना, उसमें पेज नंबर 333 ठीक है सर। उसके ऊपर आप रिफर करिए, एक अच्छा सा टेबल दिया हुआ है विच इज इन लाइन विथ द गाइडलाइन, दैट इज IRA गाइडलाइन है। तो इसमें सर एक दूसरा इशू ये आता है कि जैसे एग्रीकल्चर लोन है, उसमें हमारे टोटल रोल ओवर नहीं हुआ सिर्फ, लेकिन इंटरेस्ट रेगुलरली सर्व हो रहा है केसीसी में। तो उस केस में वो कहते हैं कि सबवेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो क्या अकाउंट वो एनपीए होगा कि नहीं होगा? सर केसीसी इज अ वेरी डाइसी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। केसीसी के अंदर क्या हो रहा है कि लोन्स क्लोज होती है, लोन सेम डे के ऊपर वो लेके भी जाते हैं, राइट? सो इश्यू वहां केसीसी में काफी जगह पे हमको देखने में आया है। अभी आई ऑलवेज से दिस वन कि केसीसी का जब भी आप ऑडिट करो तो आप 2 डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लो कि कैश डिपॉजिट या जो भी डिपॉजिट है वो, और विड्रॉल, वो दोनों के डॉक्यूमेंट हो। If you have the document in hand, then you cannot say anything with respect to KCC's issue. अगर केसीसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो मैंने जो आपको पॉइंट बोला ना, वो पॉइंट के ऊपर आप रिव्यू उसको कीजिए कि क्या वो एनपीए बन सकता है या नहीं। In my knowledge, almost all the accounts of KCC, they are not turning into NPA because some transactions would be there before the same turning into NPA. But एक 2 साल से बहुत मेहनत करके ये चैप्टर लिखा गया है एग्रीकल्चर का। मैं आपको बोलता हूँ आप प्लीज पढ़िए, आपको सही में उसमें अच्छा वो मिलेगा। गाइडेंस नोट के अंदर है,
राइट 318 पेज से शुरू हो रहा है, वो पढ़ने जैसा टॉपिक है, बहुत मेहनत हुआ है। 317 सॉरी, आप उससे पढ़िए, उसमें काफी सारे टेबल्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ईयर ऑन ईयर आता है ना, वो टेबल के अंदर डेट्स चेंज करनी है, और वो एग्जैक्टली इन सिंक विथ आरबीआई गाइडलाइंस है, और बहुत ही अच्छे टेबुलेटेड फॉर्म में दिया है। सो प्लीज डू दैट। अगर उसमें से आपको मेरे हिसाब से तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर। Right? Okay. Now, sir, we have 3 questions into Q&A. हरि नारायण जी पूछ रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन मिलेगा। अश्विनी जी ने आई थिंक भेज दिया है। नहीं मिला है तो आपका कैसे करेंगे सर? अश्विनी जी को ईमेल एड्रेस पहुंचा दे। I think he is on phone. Just same question is of Raj ji. Can we get the soft copy? Yes, it is already shared, sir. We'll arrange something, or you can send your email if you have not received it from the organizer. Anil Gupta ji ka question hai, how many times a manager can give TOD and how long time? See, how many times, sir, it is not specified as such, but amount of TOD per TOD amount is prescribed for each bank manager as per the grade of the manager. However, if it is too frequent money, again, it is not a watertight compartment that is shared anywhere. Even LFR also says that are there any instances of frequent TODs, that you need to judge based on that case, and you need to report it that way. But I can give you the response on how long time. I think you need to refer it to the ad hoc limit, and you need to consider that TOD on an at par with the ad hoc limit only. So ad hoc I think 90 days का रहता है, तो उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। But ये जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ would be subject to बैंक्स इंटरनल गाइडलाइन। बैंक की गाइडलाइन बोल रही है कि 30 दिन से ऊपर आप टीओडी नहीं दे सकते, तो यू नीड टू फॉलो द बैंक गाइडलाइन। इफ एट ऑल यू आर गोइंग बियॉन्ड बैंक्स गाइडलाइन, देन चेक इट वेदर the bank has whether this any exception sanction is taken for the same or not. Right? I think Sunil ji has a question. Okay, I am allowing because sir is not there. Sunil ji, you can unmute yourself. Do you want to speak to Sunil Dutt ji? I think by mistake. Pradeep Anand ji would like to speak to. I allowed you to speak, sir. You can just unmute and you can speak to. Yeah. Yes, sir. Am I audible? Yeah, sir. Yeah, I just wanted to check about the position of the large borrower accounts, in which an extra has to be submitted, on the large borrower, 2% or 5 crore. So what happens is that the branch is never prepared with the annexure, and they give you at the last time when you have almost completed your audit. It comes without any observations of the branch regarding internal inspection notes or all the points raised by the concurrent auditors. They say everything is absolutely hunky-dory. There's no problem at all with the accounts. When you go through the account, you find so many deficiencies in the account, particularly in case, there is ASM audit is also there. Even they have not mentioned the observations of that, in that annexure. So how do we proceed to handle these large borrower cases? Okay. Now, point is this, that 2%, 2 crore, 5% is now gone. It's now 10%, 10 crore. The problem is same. They don't prepare any basic data as well. They don't provide any basic data as well. I would suggest you 2-3 points, right? That will at least, it may not serve you as a cent% of the work, but at least I can suggest you certain things. First and the foremost thing is that there is one clause into LFR where it is clearly mentioned that, do you like to mention anything to the senior management of the bank as well as central statutory auditor? Please make a note of this part, right? And clearly state this. Secondly, whatever your observations are there, you just mention therein in that annexure as well, or you can mention it in a LFR. Thirdly, as far as I know, what I have read, you are not supposed to sign that one. That is only an information that should be with you.
and it should not be signed by the auditors, but banks do ask for the signature as well. You can take your own call, because the moment you sign it, you also certifying that you have already we reviewed the other part as well, right? So this is what my submissions are. सुनील दत्त जी, आपको भी अनम्यूट किया है जी। सुनील दत्त जी, सर मैंने किया था, बट आई थिंक उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, तो इसके लिए हाँ। हाँ जी कुंतल भाई, प्लीज। या जस्ट अ मिनट सर। हाँ सर, आपका फोन चालू था। एक्चुअली 2 क्वेरी है मैंने पेंडिंग रखे, हरिनारायण जी और राज जी का, उनको प्रेजेंटेशन चाहिए। अभी शायद हो सकता है कि वो आपके मेलिंग लिस्ट में ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? उनको चैट बॉक्स में बोल दूं ईमेल डालने का? ईमेल पे सर कैसे भेजेंगे? उनको बोलो मेरे को, मेरा नंबर है 9876063350। I'll mention it in मैं मेंशन कर रहा हूँ कुंतल भाई, आप कंटिन्यू करो। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वो मेरे को भेज देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। एग्जैक्टली दैट वुड बी ग्रेट, राइट? मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। ओके, ग्रेट। या बिकॉज इसमें ऑनलाइन में क्या होता है सर, दूसरे जगह से भी लोग आते हैं, तो उनके पास शायद आपका मेलिंग लिस्ट में नाम ना हो, राइट? Okay, so now we'll be going through the plunging into the system for LFAR and tax audit requirements. So it is like this way. How I have prepared this one. Whatever are the requirements of LFAR, I have put it into the first part, that is cash, what to verify and source from where to verify. So अगर आपको कैश में चेक करना है तो क्या चेक करोगे कि कैश बैलेंस 31 मार्च को क्या है, कैश बैलेंस ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, अगर फ्राइडे स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग या कुछ इंटरनल है तो फिनेकल में आप ACLI ऑप्शन में जा सकते हैं, वॉल्ट अकाउंट, टेलर अकाउंट के अंदर जा सकते हैं, TCS बैंक्स के अंदर रिपोर्ट कैश रिलेटेड रिपोर्ट व्यू कैश समरी में जा सकते हैं, ब्रांच रिपोर्ट के अंदर कैश ऑफिसर जॉटिंग बुक में जा सकते हैं, और ऐसे फ्लेक्स क्यूब के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जाके और GL ट्रांजैक्शन मूवमेंट इंक्वायरी में भी जा सकते हैं। नाउ दीज आर इंडिकेटिव कमांड्स दैट at least will ignite, or at least you start working on to this one. Some banks may have commands where they have category got it customized. In that scenario, I won't be in a position to include that because that will be bank specific. What I will be speaking here would be only a general this one. Then comes the balance with RBI and SBI. So it goes like this way, that balance as on date, transaction in mirror accounts and reconciliation statement, generally it is done at the outside, right? So from which command we can do this activity, that is what is mentioned here, right? एक और चीज मैं आपको यहाँ एक ब्रेक कर रहा हूँ और एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो मैंने इसके अंदर दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, जो मटेरियल की, तो मैं जस्ट समझाता हूँ बिकॉज काफी लोगों को क्वेरीज कमांड के रिलेटेड है। तो कमांड में इश्यू क्या आता है कि एक एक्टिविटी है और अलग अलग सिस्टम के अंदर हमको काम करना है। तो मैं आपको एक स्क्रीन दूसरा एक शेयर करता हूँ, आपको समझाता हूँ। एक दूसरा प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है उसके अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कैसे वर्क करता है। Yeah, so you will now be in a position to view my another this one. See, understand what I have done into this one is that कस्टमर मास्टर मेंटेनेंस के लिए जो काम करना है उसमें फिनेकल 7, 10 TCS बैंक्स और फ्लेक्स क्यूब में कैसे कर सकते हैं ये दिया हुआ है। जबकि जो हम अभी प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो LFAR में काम करना है और जो करना है वो कितने सिस्टम से कैसे कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस समझना, बिकॉज ये दूसरा एक प्रेजेंटेशन भी मैंने शेयर किया है। जैसे अकाउंट मास्टर रिलेटेड काम करना है तो सिस्टम में कैसे करना है, तीनों सिस्टम के अंदर, राइट। अकाउंट लेजर इंक्वायरी करना है तो वो स्टेटमेंट इंक्वायरी कैसे करेंगे, लाइकवाइज, राइट। ये देखिए, ये इंटरेस्ट टेबल का जो रहता है कि भाई इंटरेस्ट टेबल में चेंज कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, तो उसके लिए है।
Right. So read it from this particular presentation. I generally take when I have timing of about 5 hours in a concurrent audit course. So that also I have shared. So you can make use of that one. This is actually it is about 166 pages. This one, where this current presentation I have shared, the one that I am taking right now. ये दूसरा एक presentation है. ये एक ई बुक पब्लिश हुआ है सीबीएस एनवायरमेंट, जहां मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लिखने के लिए, ज्यादा कुछ लिखना है तो वो मैंने लिखा हुआ है नैरेटिव फॉर्म में. उसके अंदर आपको ये कमांड का लिस्ट मिलेगा कि अकाउंट की कस्टमर मास्टर इंक्वायरी के लिए कितने टाइप के अकाउंट है. फिनेकल 7 में उससे क्या होता है, वो इंक्वायरी वाला है, रिपोर्ट वाला है, वो सब कुछ लिखा हुआ है. राइट. ट्रांजैक्शन के लिए कौन से मेनू है. राइट. और पार्ट सी के अंदर ये क्या है कि इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट ऑन ऑडिट थ्रू सीबीएस सिस्टम, जो एनपीए के अंदर इश्यूज आते हैं वो ये है. ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी मैंने इंक्लूड किया है. उसके अंदर मैंने अलग सिस्टम्स भी इंक्लूड करके रखे हैं. उसके बाद इंटरेस्ट टेबल में इश्यू आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में क्या आते हैं, ऑफिस अकाउंट के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं. राइट. ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है. और ये सीबीएस जो अभी हम चेक कर रहे हैं ना, वो भी इसके अंदर डिटेल में ब्रॉडकास्ट भी कर दिए कुंतल भाई सबको ना. ठीक है सर. राइट. तो ये आप ऐसे उसको पढ़ सकते हैं. और एक एक्सेल का भी मैंने दिया है, बेसिक से, एकदम बेसिक है एक्सेल का, मैंने कुछ फैंसी नहीं किया है. तो एटलीस्ट आप बेसिक तो आना ही चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई इंक्लूडेड डिटेल में. राइट. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर फाइल इज मेड अप ऑफ. हम वापिस अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं. तो आपको कौन सी फाइल कैसे यूज करना है उसमें वो आप देख सकते हैं. सिंस नाउ दैट बैलेंस विथ आरबीआई एंड एसबीआई अदर बैंक्स, तो उसके अंदर सिस्टम का ये सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है. ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है. मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कहाँ से कर सकते हैं. फ्लेक्स क्यूब के अंदर यहाँ से है, बैंक्स के अंदर, और एडवांसेस के अंदर मैंने डिटेल में वर्किंग दिया हुआ है दैट व्हाट टू वेरीफाई. तो अभी हमने जो एक एक्सेल शीट की मैं बात कर रहा था ना, जहां इंटरेस्ट तक हम खड़े थे, उसके बाद आपको सैंक्शन लिमिट का एक कॉलम बनाना है कि भाई सैंक्शन लिमिट सिस्टम में क्या है और सैंक्शन लिमिट इसमें सैंक्शन लिमिट में क्या है, क्या कोई डिफरेंस है. सेम वे ड्राइंग पावर के ऊपर. और एक आपको चीज चेक करना है कि क्या सैंक्शन लिमिट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है, क्या ड्राइंग पावर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है अदर देन द स्टॉक स्टेटमेंट के कारण. अगर हुआ है तो उसके डिटेल्स लिखने हैं, वो फाइल के अंदर बनाना है और आपको चेक करना है कि उसका रीजन क्या है. फिर उसके बाद नोटेशन लिखने हैं. अगर आपको बराबर दिखता है तो ओके मत लिखो, लिखो कि क्या चेक किया, और तो अपना वर्किंग पेपर बराबर रहेगा. कोई आपको 1 साल के बाद भी पूछेगा कि ये ओके माने क्या, तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. राइट. सो दैट इज व्हाट एडवांसेस के अंदर तकरीबन 12 पॉइंट्स मैंने दिए हैं कि क्या क्या चेक करना चाहिए. इंटरेस्ट पैरामीटर देखना है और कहां से देखना है. तो एक ट्राई ऐसा किया है कि हर एक सिस्टम को हर एक ऑडिट प्रोसेस के साथ मैप किया है. तो माने किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं छूट गया हूं, कि मेरा ऑडिट छूट गया है, कि आपने सिर्फ फिनेकल पढ़ाया, आपने सिर्फ बैंक्स पढ़ाया या सिर्फ फ्लेक्स क्यूब पढ़ाया. राइट. तो सबको सब जगह पे मिल जाएगा. आपके पास कॉन्करेंट ऑडिट है जिसमें फ्लेक्स क्यूब है, स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है जिसमें फिनेकल आता है. सो ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट इज यूजफुल फॉर यू. राइट. एक इसके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ, काफी बार आप बैंक्स में जाते हैं ना, तो क्रेडिट टर्नओवर के लिए बैंक्स बताते हैं कि आप एटीओआर चेक कर लो, सर देखो उसमें बढ़िया क्रेडिट है. राइट. मैं आपको ये क्विकली ये खत्म करने के बाद आपको एनपीए के ऊपर लेके जाता हूँ कि एनपीए कैसे छुपाते हैं या छुप जाते हैं या दब जाते हैं, और हम अच्छी तरह से उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हमको वो भी देखना है. उसके अंदर मैं समझाता हूँ कि अगर अकाउंट एटीओआर करेंगे ना, तो उसमें इश्यू क्या आता है कि आपको जो क्रेडिट जेन्युइन नहीं है ना, वो भी टोटल में आ जाता है. सो प्लीज डोंट कंसीडर एटीओआर एज अ फेस वैल्यू. You need to review the statement as well in detail, and then you will be in a position to understand whether the correct credit turnover is appearing or not. Because otherwise क्या होगा कि आप सिर्फ क्रेडिट टर्नओवर देख के बोल दोगे अरे नहीं जाने दो, ये अकाउंट को अच्छा टर्नओवर आता है, जबकि आपको पता चलेगा, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, जबकि पता चलेगा ये तो डेबिट क्रेडिट सेम अकाउंट में ही चालू है. राइट. तो ऐसा ना हो. राइट. सो दिस इज वन एडवांसेस टेम्पररी ओवरड्राफ्ट कैसे देखे और क्या देखे.
So this is what is also there. NPA के लिए account based criteria, interest report. ये इंटरेस्ट रिपोर्ट एक अच्छा हमको आना चाहिए. AINT-RPT बहुत बढ़िया रिपोर्ट है फिनेकल के अंदर, दैट इट गिव्स यू एन फैंटास्टिक रिपोर्ट. अगर फिनेकल 10 है ना तो HINT-PRF अगर चालू है तो प्लीज वो यूज कीजिए. इतना बढ़िया रिपोर्ट आता है ना, आप भी खुश हो जाएंगे. अरे एकदम से तैयारी आया कि कौन सा क्लोजिंग बैलेंस आया, उसके ऊपर कितने रेट के ऊपर लिया और कैसे इंटरेस्ट कंप्लीट किया, और क्या उसके साथ वो इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. और आपको एक्सपोर्ट करके आप अगर एक्सेल में रीचेक करना चाहते हैं कि सिस्टम ने इंटरेस्ट बराबर कंप्यूट किया है कि नहीं, तो वो भी मिल जाता है. एक दो पार्टिसिपेंट ने मुझे ये भी बोला कि सर हम अंदर जाके एक एक टेबल में जाके इंटरेस्ट देके उससे अच्छा है हम रिपोर्ट ही जनरेट कर दे, और रिपोर्ट के अंदर जो एक्चुअल एप्लीकेशन हुआ है ब्याज वो उससे ही रेट ले ले. मैंने बोला वो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप वो कर सकते हो तो द बेस्ट है, बिकॉज उससे आपके दो काम हो जाते हैं. एक, वन, दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू फिनिश अप योर इंटरेस्ट पार्ट. सेकंड, यू विल बी आल्सो इन अ पोजीशन टू गेट द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो रेट उसने अप्लाई किए हैं, राइट. सो दैट आल्सो यू कैन थिंक इट ओवर एंड यू कैन मेक यूज ऑफ. प्राइमरी कोलैटरल सिक्योरिटी, लीन मार्किंग है, अकाउंट लेजर प्रिंटिंग है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स है, डिवॉल्व्ड LC BGs है, राइट. सो ऐसे सब एरियाज है जो मैंने उसके अंदर दिए हुए हैं कि आप ऐसे काम कीजिए. अभी मैं आपको कितना भी समझाऊंगा, बट जब तक सिस्टम सामने नहीं होगा यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट हैव अ प्रिंट आउट और एटलीस्ट ऑन अ सॉफ्ट फॉर्मेट, हैव इट विथ यू whenever you go to the system, whenever you go for the auditing, you can go and check with this one. At least my belief is that if at all 10% भी आपको हेल्प आती है, then I will feel privileged कि नहीं आपको 10% भी उसमें हेल्प हुआ, right. I can at least give you some I can just incentivize you that at least go for the war, but I cannot pay the war for you, right. I cannot be the person that I'll wage a war for you, right. But at least मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अंदर जाएंगे, ऑडिट करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ सपोर्ट है. ये सपोर्ट मैकेनिज्म है. एक्सेप्शन रिपोर्ट आप निकालते हैं तो प्रॉब्लम वही आता है कि ये रिपोर्ट दे दो, वो रिपोर्ट दे दो, हम बोल देते हैं, बट उसके अंदर देखना क्या है. सो दीस आर द थिंग्स दैट वी शुड बी लुकिंग इनटू. इरेगुलरिटी रिपोर्ट में क्या देखना है, तो ये देखना है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट CBS का LFR के अंदर, और हम उसके आगे अभी एक जाएंगे NPA के लिए. सो व्हाट आई वुड नाउ वुड लाइक टू हैव इज द पैरामीटर अफेक्टिंग NPA आइडेंटिफिकेशन, एंड थोड़े केस स्टडी लेते हैं. तो उससे क्या होगा कि हमको एक अच्छे से एक सीक्वेंसिंग पता चलेगी कि भाई क्या कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. आई थिंक 2 क्वेश्चन है, 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किए हैं. क्वेश्चन ले लेता हूं मैं. ओह सॉरी, इट्स अ चैट. सर आप लोग सर से मांगे, उससे अच्छा है आप उनको हाई करके भेजेंगे तो वो फॉरवर्ड कर पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज उनको ऐड करना पड़ेगा आपको. आप देख लीजिए कैसे सूटेबल है. जो प्रेजेंटेशन सर से मांग रहे हैं यू कैन डिसाइड अपॉन. नहीं, सुनील दत्त जी का ही है. या सर. कुंतल जी, एक इशू मेरा है कि जहां पर IBS में कंपनीज चली जाती हैं तो वहां पर रिपोर्टिंग में क्या किया जाए, बिकॉज वो सिक्योरिटी तो हमारे हाथ से निकल जाती है. हाँ, तो उसमें हाउ टू रिपोर्ट इट. कहाँ जाती है सर? इंसॉल्वेंसी में चली जाती है ना. इंसॉल्वेंसी में, ओके. IBS में तो उसमें क्या होता है, वो सारी की सारी जितनी भी एसेट्स होती हैं दे आर विद द IP. सर उसके अंदर एक्चुअली ये होता है कि इंसॉल्वेंसी के अंदर आपको रैंकिंग देते हैं, मुझे जब तक पता है कि किसका क्रेडिटर का कितना रैंकिंग में आता है, और उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि इतना अप्रोप्रिएशन आपके उसमें आएगा, राइट. वो हिसाब से आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है. यू कैन नॉट सिंपली रिकॉग्नाइज कि जो भी है वो सब मेरा ही है. अभी आपको रैंकिंग देखना है कि पहले बैंक का कितना पहला भाग बैंक का है या दूसरे क्रेडिटर का, या उसके ऊपर के क्रेडिटर भी कोई है, राइट. उसके बाद आपको देखना है. जस्ट बिकॉज द हैंड गॉट टेकन विद टू एन IP, दैट डज नॉट मीन कि मेरा पूरा चला गया, कि मुझे पूरा मिल गया, राइट. Sorry, go ahead. Yeah, what we need to do is where our ranking stand with respect to the security. एक इश्यू ये आएगा कि IP ने शायद उसका रीवैल्यूएशन कराया या वैल्यूएशन कराया, बैंक ने कराया, और वैल्यू कम आ गई. Right. In that scenario, it may so happen that we need to mention the updated value in the system. और अगर वो ड्रास्टिक रिडक्शन है जो हमको 50% 90% वाला आता है, तो एक प्रॉब्लम वाला एरिया हो सकता है.
उस पे एक इशू ये आता है, वो बैंक को पूछते हैं कि डू यू वांट टू सरेंडर योर सिक्योरिटी और यू वांट टू कंटिन्यू टू बी सिक्योर्ड क्रेडिटर। वहां पर जाके थोड़ा सा इशू डाइसी हो जाता है, बिकॉज वो हमसे भी एडवाइस मांगते हैं, क्योंकि आईबीएस में पहला जो फर्स्ट राइट होता है वो होता है आईपी का, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, फिर आते हैं वर्कमैन, उसके बाद फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अपना रैंकिंग में हम कहाँ आते हैं वो हमको राइट। और अगर रैंकिंग में हमको पता चलता है कि हमारा नहीं आने वाले कंफर्म लॉस हो रहा है, then you cannot keep with that security as such. So do you think we should take it? वो सर उसमें क्या होता है, वो एक्चुअल होता नहीं है ना, तब तक सही में कुछ गॉज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें तो क्या है कि उसका पैसा निकालेगा, उसके बाद वो वर्कर को सब देगा जो जो प्रायोरिटी में जाएंगे, प्रायोरिटी में जाएंगे, ठीक, पता नहीं चलता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जनरली दे टेक केयर ऑफ दिस। तो इज इट बेटर टू बी कंजर्वेटिव इन दैट एंड रिपोर्ट इट अकॉर्डिंगली? I would say that as an auditor, yes, you do report stating that there is an risk of losing capital. What you can call is that there is a threat to the recovery over the security because these are the conditions. Right? And what you can say is that bank should reevaluate at the earliest rather than waiting for the other period, so that the actual value can be. So don't take anything on you as an owners. Passing the ball to the bankers. Because काफी बार हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर काफी चीज ले लेते हैं और फिर वो वही हमारे ऊपर बूमरैंग करता है। पर उसको हम रिपोर्ट किस में करें? As what? नहीं क्लासिफिकेशन क्या दे उसकी? नहीं क्लासिफिकेशन, इफ देयर इज अ थ्रेट टू द रिकवरी तो वो 50% 90% के केस में पहले देखना है। ठीक है, कि जो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ उसमें अगर डाउनफॉल में सीधा डालना है या लॉस में डालना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास टेंजिबल कुछ नहीं है तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। यस, बट देयर इज अ क्रेडिट वीकनेस। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. So now we'll be discussing on to certain parameters affecting NPA identification. आप ऐसे रीड कीजिए उसको कि अगर ये गलती हो गई सिस्टम के अंदर तो ये अकाउंट्स भले ही सिस्टम बराबर से सेटअप है, दैट इज सिस्टम इज परफेक्टली सेटअप, बट देन ऑल्सो सिस्टम विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द अकाउंट एज NPA. Right. So what we need to understand is this, that in terms of directives issued by Ministry of Finance and Reserve Bank of India, it is mandatory for banks to identify the bad loans through CBS or system instead of conventional method. CBS, like other software, work in GIGO principle, garbage in, garbage out. If you throw garbage into the system, you will only get a garbage as an output. You can't expect a magic out of a system where the garbage is thrown into. Master data also play an important role in correct identification of bad loan. अगर गलत master data डाला है, you cannot expect that you will get a perfect result, right? So what we need to understand now is these are few of the events. If you find this kind of thing in your auditing, एक आपके पास एक रेड सिग्नल हो जाना चाहिए कि yes, these are the cases where there might be an issue with respect to NPA identification. Let's take one by one and quickly. That is discrepancy in setting up of EMI or an installment. EMI, as per the sanction letter, it is mentioned that 25,000 is an EMI, whereas in system it is updated as 20,000 with an extended period of loan expiry. So होगा क्या ये सिनेरियो में, फर्स्ट ऑफ अप्रैल, जैसे लेट्स से अप्रैल महीने से उसका इंस्टॉलमेंट शुरू होना है, तो अप्रैल महीने में सिस्टम बोलेगा कि 25,000 रुपए ड्यू होता है एंड द पर्सन वुड बी पेइंग 20,000 रुपए, सॉरी सिस्टम बोलेगा 20,000 रुपए ड्यू हुआ है और बोरोवर पे करेगा 25,000 रुपए। ऐसे चलता रहा 3 महीने तक, तो 5,000 वो ज्यादा भरता रहा, तो 15,000 रुपए तक एक्सेस पेमेंट कर दिया, ऐसा सिस्टम दिखाता है। मान लो कि जुलाई महीने से वो पैसा नहीं भर रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ड्यू करेगा 20,000 रुपए, पैसा तो भरा नहीं है, तो वो जो एक्सेस भरा है उसके सामने एडजस्ट करेगा सिस्टम के अंदर और वो 5,000 रुपए ओवर ड्यू में आएगा। 5,000 आया, 25,000 हुआ नेक्स्ट महीने में और सितंबर महीने में वो 45,000 हो गया। Now whether that account can be classified as NPA by the system, whether system will classify, no. Reason, because system has considered that the overdue is of 45,000, whereas what is the monthly or daily repayment, and whether what is the if you convert it into the days, what is the number of days, that is the less than 90 only. So in that scenario, system will not identify that account as NPA. System will work on the basis of due overdues. So we need to understand whether due and overdues are correctly classified into the getting correctly computed into the system or not.
right? So that is possible only when the master data is correctly set up, right? So that Excel file I was referring to, where interest rate, DP, sanction limit, and everything you have mentioned, you also need to mention the installment amount. So what is the installment amount as per system? What is the installment amount as per the sanction letter? And if there is a material divergence, right? अगर 24,981 आता है सिस्टम के अंदर और 25,000 मांगा है in the sanction letter, that's fair enough. That is for the convenience purpose. But if there is a vast difference, then we need to understand that. We need to check this in detail, whether it will impact anything onto the NP identification. Many of the time we find that there is overflow position, meaning thereby customer has paid more than what is due. So in that scenario, we feel that no, ये account में तो कुछ issue नहीं होगा. But I will always say that please check that account at least, whether the overflow position is correctly identified by the system or not. That is what we need to see to it. Same thing is there are multiple set of EMIs. ऐसी loans भी आती है जो पहले 5 साल तक 5,000 रुपए का EMI है और 7,000 का नेक्स्ट 5 साल के बाद वो 7,500 हो जाएगा. अभी ये मल्टीपल सेट ऑफ EMI में क्या होता है कि क्या वो सेटअप बराबर हुआ है कि नहीं. एक ब्रांच के अंदर हमको ऐसा इश्यू मिला था कि सैंक्शन लेटर के अंदर तो ऐसा बोला है कि 20,000 और 25,000 का EMI का 5 साल तक 20,000 और उसके बाद 25,000. बट सिस्टम के अंदर ऐसा सेटअप किया, पहले 5 साल 5,000 रुपए और सेकंड लेग में दैट इज 5th ईयर ऑनवर्ड्स 6th ईयर ऑनवर्ड्स 1 लाख रुपीस. नाउ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? वो प्रॉब्लम करने ही वाला है. सो अंडरस्टैंड दैट जो 5,000 रुपए महीने में भरेगा वो 1 लाख रुपए कैसे स्टार्ट करेगा भरने का. सो दिस इज हाउ प्रोबेबली देयर माइट बी सम मिस्चीफ इनटू द सिस्टम वेयर इन अपडेटिंग एंड प्रोबेबली 5 साल तक ये अकाउंट में कुछ ना हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. मेंशन इट इन योर एक्सेल फाइल, mention it what is there into the sanction letter, and then check whether there are any issues with this one or not. Alternatively, you can prepare, मैंने जितने कंडीशंस लिखे हैं वो कंडीशन का एक अलग एक्सेल फाइल बना दो और हर एक अकाउंट को वो पर्सपेक्टिव से भी देख लो. That is also possible, whichever you would like to do it. One question is there in Q&A. I'll quickly take that. Ashutosh ji has a question, sir. If someone has paid an advance amount covering EMI of the full year at the start of the year, but no credit in the full year, how to treat such account? So that's not an issue at all. If repayment is made in excess, then the system will automatically adjust that part. Your aspect of non-recovery or non-credit during the last 90 days is with respect to this CC part. So in this scenario, the system will automatically adjust. What you need to see is what is due and what is paid. So there should not be any amount in the overdue position. In this case, the system will be looking into as an overflow position. But I'll come to that before you put a rejoinder. There are systems in the bank where the bank or the policies are also there in the bank. When you do an ad hoc repayment or an advance repayment, banks do ask you what you would like to do. Would you like to get your EMI changed, or you would like to prepone your repayment expiry date? So first, check the bank's policy. What is the bank policy? Whether there is option to be given or whether there is a specific point that no expiry would not be changed, only EMI would be changed. In that scenario, you need to readjust an entire EMI in that sense. If it is an option, whether the option is given and whether the customer has availed that option or not. Then comes the very important aspect, manipulation in sanction limit and DP. I'll just explain you how the system works. As we have all discussed, that system works on a due and overdue concept. In case of an CCN and OD account, the out of order status, one of the conditions says that if the account balance is continuously in excess of the sanction limit or a drawing power, whichever is less, then the account would be classified as out of order and thus turning into an NPA. राइट ये गाइडलाइन सबको पता है. अभी होता क्या है, लेट्स से 89 डेज तक एक अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए का लिमिट है और मैक्सिमम 1,15,000 तक वो डेबिट में ही है. 89 डेज हो गए हैं. अगर कल भी एक ऐसा ही रहा, एंड ऑफ डे हो गया, तो वो अकाउंट एनपीए में चला जाएगा. बट अगर वही लास्ट दिन के ऊपर या बीच में कोई दिन के ऊपर 1 लाख का लिमिट बढ़ा के 1,25,000 कर दिया, तो सिस्टम क्या देखेगा कि सिस्टम बैलेंस दैट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड. In that scenario, what will happen is that system will not consider as a continuous overdue for 90 days. Rather, this entire
So the moment the counter restarts, you will have again let's say that 1.25 को वापिस 1 लाख कर दिया. अगर किसी ने पूछा तो बोलेंगे गलती से हो गया था. अगर वो गलती से हो गया था, फेयर इनफ, अगर गलती हो गई है तो वी कैन अंडरस्टैंड गलती होती है, बट क्या वो गलती के कारण एनपीए आइडेंटिफिकेशन के ऊपर इंपैक्ट है? अगर है, mention it. Don't go into either intentional or unintentional, because that is not our forte. We don't need to go into that one. What we need to do is whether ये हुआ है या नहीं. हाँ, unless आपको लगता है कि मास स्केल के ऊपर हुआ है और वो फ्रॉड के का रिपोर्टिंग के ऊपर आता है, then you can think it over on that line. Then comes the incorrect moratorium period, whether moratorium is properly set up. Moratorium 2-3 तरीके से आता है. Amit ji has a question, raised hand, and Pradeep ji has a question. DP is not properly computed on account of misreporting of credit and monthly stock statement vis-a-vis creditor figure in ABS of last year ended. How should the situation be dealt with? A very valid question. I'll respond it like this way. I don't know whether everyone would like this or not. सर मैं क्या बताता हूँ प्रदीप जी कि आपको क्या करना है कि जो डीपी सही में बनता है वो डीपी आपको अराइव करना है. आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है एक्सेल में. आपको जो सही डीपी बनता है वो सही डीपी उसके अंदर डालना है. वो डीपी डालने के बाद आपको नया ओवरड्यू कंप्यूट करना है एक्सेल के अंदर ये सब. और ओवरड्यू अगर 90 डेज के ऊपर जाता है आप एनपीए कर सकते हैं. बट ये एक्टिविटी अगर आपने किया है तो, अगर नहीं किया है तो आप सीधा बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू नीड टू शो दैट यस दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए. ओके, मॉरेटोरियम 3 तरह से लग सकता है. एक मॉरेटोरियम का मंथ लगा के कि 3 महीने का मॉरेटोरियम है, या इंटरेस्ट स्टार्ट डेट, दैट इज इंटरेस्ट डिमांड डेट का जो रहता है ना वो कब से शुरू करना है, और तीसरा रहता है इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट. राइट. सो वो जस्ट अ मिनट प्रदीप जी, मैं आऊंगा, मैं ये खत्म कर लेता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास. तो ये तीनों चीज हमको ध्यान में देखना है. तो जो एक्सेल शीट हमने बात किया था उसके अंदर आप मॉरेटोरियम का भी कॉलम लगा दीजिए, इंटरेस्ट स्टार्ट डेट का भी कॉलम लगा दीजिए, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट का भी कॉलम लगा दीजिए, और देख लीजिए कि उसके अंदर क्या लिखा है और सैंक्शन लेटर के अंदर क्या है. सैंक्शन लेटर के अंदर कोई भी कहीं पे भी डिफरेंस आता है उसको टैग कीजिए कि भाई इसको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखना है. जहां कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो अकाउंट का हो गया, काम अपना बराबर हो गया. राइट. तो आप देखेंगे भी सही और आप उसका रिकॉर्ड भी रखते हो कि हाँ हमने देखा है. राइट. रीफेसमेंट विदाउट रिपोर्टिंग एंड रीशेड्यूलमेंट, काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिस्टम के अंदर जाके वो सब चेंज कर देते हैं और रीशेड्यूलमेंट यानी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं दिखाते हैं. अभी रीस्ट्रक्चरिंग आप नहीं दिखाओगे तो इश्यू क्या होगा कि अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा और पोजीशन सही नहीं दिखेगा. अभी वो सिनेरियो को हमको ध्यान से देखना है कि क्या ऐसे कोई केस हुए हैं कि जहां रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है और फिर भी उसको बराबर से रिपोर्ट नहीं किया है. तो एक ही सिनेरियो है कि आप जब अकाउंट का स्क्रूटिनी करते हैं तब आप उसको इंटरेस्ट में देखिए कि इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट दिया है बिकॉज ऑफ द बोरोवर इज फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, या ईएमआई चेंज करके दिया या एक्सपायरी डेट चेंज करके दिया. बट उसको आपको रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन के साथ मैच करना है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन के साथ बैठता है या नहीं बैठता है. अगर बैठता है और फिर भी रिपोर्ट नहीं किया है देन वी नीड टू रिपोर्ट इट इन आवर ऑडिट रिपोर्ट. ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, इंटरेस्ट डिमांड डेट वो हो गया. एक और डेंजरस पॉइंट आता है फिक्टिशियस क्रेडिट. फिक्टिशियस क्रेडिट क्या रहता है कि क्रेडिट एक्चुअली जेन्युइन क्रेडिट नहीं है, बट वो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम देख लेता है कि भाई इंटरेस्ट डेबिट हुआ है लास्ट 90 दिन में, वो कितना हुआ, टोटल क्रेडिट सम कितना है. टोटल क्रेडिट सम अगर इंटरेस्ट डेबिट से कम है तो सिस्टम उसको एनपीए कर देगा बिकॉज ऑफ दैट आउट ऑफ ऑर्डर गाइडलाइन. तो सिस्टम तो आपको अकाउंट के अंदर क्रेडिट टर्नओवर लाना है. तो क्रेडिट टर्नओवर काफी जगह से हो सकता है कि भाई आप ऑफिस अकाउंट को कुछ के डेबिट किया, इसमें क्रेडिट किया और तुरंत डेबिट करके वापस पैसा भेज दिया और लिख दिया कि रॉन्ग एंट्री रिवर्सल. ऐसे भी क्रेडिट टर्नओवर, बिकॉज सिस्टम को नहीं पता चलता है कि ये क्रेडिट टर्नओवर है वो जेन्युइन है या नहीं है. सिस्टम तो क्या क्रेडिट देखती है, क्रेडिट आप दिखाओगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है. आपको जब अकाउंट स्क्रूटिनी करते हो तब ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको लगता है कि ये गलत एंट्री के कारण इसमें इश्यू हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग द अकाउंट एज एनपीए, तो वो सिनेरियो के अंदर आपको
वो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के वो एंट्री को इग्नोर करके आपको देखना है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी उसके लिए आपको अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर ट्रांजैक्शन का डिटेलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा। दूसरे सिनेरियो ऐसे आते हैं कि किसी और के अकाउंट में से डेबिट करते हैं और यहाँ क्रेडिट करते हैं और फिर वापस उसको दे देते हैं, जिसको राउंड ट्रिपिंग हम बोलते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग इज ऑल्सो मैनेज। आपको अगर चेन ऑफ ऐसे ट्रांजैक्शन दिखे कि जस्ट बिकॉज एक पूरे महीने में कुछ एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है और सिर्फ एक दिन के ऊपर एक 50 लाख का एंट्री आ जाता है और चला जाता है, सो दैट इटसेल्फ डिनोट दैट ही इज यूजिंग सम अदर बैंकिंग और उसका बिजनेस चालू ही नहीं है। ये तो सिर्फ चलाने के लिए कहीं से एंट्री लेके आया और एंट्री भेज दिया वापस। सो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपको देखना है कि अकाउंट में प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। Thereafter that comes the temporary overdraft. ऐसे भी केसेस देखे गए, मैं आपको केस स्टडी क्विकली दिखाऊंगा नेक्स्ट थोड़े स्लाइड के बाद। उसमें एक अकाउंट में या आपके करंट अकाउंट में टीओडी देते हैं और उसमें से पैसा रीपे करते हैं। पैसा रीपे करने के बाद आपको क्या आता है कि भाई ये तो अकाउंट पीए में चला गया बिकॉज पैसा रीपेमेंट उसका आ गया है। अभी वो सिनेरियो के अंदर ऐसा होगा कि आपको शुरू कैसे करना है। आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट विद द टीओडी रिपोर्ट, दैट कितने उसमें टीओडीज लिए हुए हैं और आप देखिए कि जिसने टीओडी लिया है उसने टीओडी लेने के बाद क्या किया है। बिकॉज देयर इज वन ऑफ द गाइडलाइन एंड द issued by Reserve Bank of India wherein it is stated that you cannot sanction a new loan to repay the existing loan. So TOD is a new loan. You cannot do that one, right? Secondly, TOD जो रिपोर्ट आप निकालते हो उसके अंदर आपको देखना है कि कौन बंदा ऐसा है कि जो मल्टीपल टीओडी लेके जा रहा है, फ्रीक्वेंट टीओडी लेके जा रहा है। जो फ्रीक्वेंट टीओडी वाला है वो आपको एलएफआर के अंदर रिपोर्ट करना रहता है। टीओडी 3 तरह के रहते हैं, फिनेकल के अंदर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, सिंगल, रनिंग एंड एडॉक, SR&A। सिंगल टीओडी ऐसा टीओडी है कि जो ट्रांजैक्शन जो आप प्रोसेस करने जाते हो तब उसके पास लिमिट नहीं है, बस वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए जो टीओडी देते हैं वो सिंगल टीओडी है। अगर वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया और उसके बाद कस्टमर ने थोड़ा पैसा भरा तो वो लिमिट उसके टैग नहीं होता है, तो वो लिमिट यूज करने को नहीं मिलेगा। लिमिट आपको रनिंग या एडॉक लिमिट दिया हुआ है तभी आपको वो लिमिट कंटिन्यूअसली यूज करने को मिलेगा फॉर द पीरियड दैट इज स्पेसिफाइड, राइट। सो दिस इज, तो आपको रिपोर्ट 2 निकालने हैं, रनिंग वाला एक निकालना है और अपना एडॉक वाला निकालना है विथ टीओडी इवेंट, टीओडी MN, दैट इज टीओडी मैनुअल इवेंट पे रिपोर्ट निकालना है। डिवॉल्व बिल्स पार्क्ड इन ऑफिस अकाउंट एंड नॉट इन लिमिट अकाउंट, ये नॉर्मल सिनेरियो है कि जैसे ही बिल डिवॉल्व होते हैं तो वो सेम सीसी अकाउंट में नहीं करता है बिकॉज वो ऑलरेडी ओवरड्यू में चलता है, और अगर ये भी डालेंगे तो और ओवरड्यू में जाएगा या पोजीशन नहीं है तो वो नया अकाउंट खोल देते हैं, बट ये सही नहीं है। दे नीड टू डेबिट इट, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वी नीड टू, दैट बैंक नीड टू डेबिट टू द ऑपरेटिव अकाउंट ओनली। अगर सीसीओडी अकाउंट नहीं है तो करंट अकाउंट में डेबिट करना है, तभी जाके 90 डेज का ओवरड्यू क्राइटेरिया प्रॉपर पता चलेगा। मल्टीपल कास्ट आईडी ये अभी थोड़ा कम हो गया है तो वी विल नॉट एंटर इनटू दैट मच। प्रोजेक्ट लोन्स, कैप्चरिंग ऑफ प्रोजेक्टेड डीसीसीओ, दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, एक्चुअल डीसीसीओ, एक्सटेंडेड डीसीसीओ। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स के अंदर ये सिस्टम के अंदर नहीं है, तो आपको जो बोलना है कि वो ऑटोमाइज सिस्टम है कि नहीं है, वो अपना एलएफआर के अंदर है ना कि ऑटोमाइज सिस्टम से होता है, तो आपको अंदर ये लिखना है अगर नहीं है तो कि नहीं ये सिनेरियो सिस्टम के अंदर नहीं है, ये सिनेरियो नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि कितने सिनेरियो के अंदर अकाउंट एनपीए होगा? उसके लिए मैंने जो आपसे सबसे पहले नहीं बोला कि एक एक्सेल फाइल बनाओ जिसमें पूरे आईआरएक्स सर्कुलर जो मास्टर सर्कुलर है उसके डाइसेक्शन करो 4 पोर्शन में। वो 4 पोर्शन में जो करोगे ना उसके अंदर से आपको इवेंट पता चलेगा। हर एक इवेंट को आपको चेक करना है कि क्या ये इवेंट सिस्टम में लाया हुआ है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, तभी जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे कि हाँ ये हुआ है या नहीं। I think someone had a question. Someone had raised an hand. No one is there now. Okay. So now let's. Okay, Pradeep ji has a question. Wait a minute. Yeah, sir. आप. Notes. Yeah, sir, you can unmute yourself and speak. हाँ जी सर। कुंतल भाई, मैंने आपसे अभी पूछा था अबाउट दिस क्राइटर्स वाली फिगर, जो मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटेड बैलेंस शीट फिगर्स अलग होती है एंड द स्टॉक स्टेटमेंट में फिगर्स बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है।
and it is substantially lower than the figure in the audited balance sheet. Now, with what is more reliable? We raised this issue and declared few accounts as NPA during my last audit. And then, I got a certificate from a chartered accountant, which had duly UDI and number on that the trade creditors in the audited balance sheet were against expenses and not against trade. They were not the trade creditors, they were the creditors for expenses, and hence the account should not be identified as a NPA. No, he is not supposed to guide you whether what you should be doing, whether to classify the NPA or not. You can do your work, right? He can do his work. His work is only to certify that whether it is against expenses or whether it is against goods, right? That is what is his brief is. Your brief is to see to it from this perspective. What you can do, that won't be determined by that action. Maximum what you can do is you can ask for the certified copies of outstanding creditors and with a sample copy of invoices. That whether this is the case, in case it is requiring that much of detailing, right? Otherwise, if there are divergencies or a vast divergencies, that is your perfectly valid. You have perfectly valid point whereby you can mention it that into your audit report, as well as taking to the extreme condition as well to mark it as an NPA. But अगर auditor के पास माने chartered accountant के पास certified आता है तो आप ये ले सकते हो, but he is not supposed to tell you what you should be doing. I agree with you. But then my question is that what is the authenticity of the figures of creditors given in the audited balance sheet? How far is that more reliable than the figure given in the stock statement? But that is, the auditor has only given it to you, right? और ये जो सर्टिफिकेट था वो ऑडिटर का ही था, राइट? सर्टिफिकेट की बात खत्म हो गई, वो तो आपकी बात ठीक है कि whether I accept go by that certificate or not is my discretion. So now the second question is that what is the reliability of the figure given in the audited balance sheet vis-a-vis what is given in the stock statements? Because there is huge variation. Maybe it is only 10. In case of huge variation, generally क्या करते हैं वो 31 मार्च का स्टॉक नहीं देते हैं, 30 मार्च का ऐसा देते हैं. बट उसके लिए भी एक पॉइंट है, अगर आपको एंड ऑफ डेट के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं आया है आपके पास, राइट, और 31 मार्च ये बनता है, तो वेरी वेल यू कैन मेंशन. उसके मल्टीपल चीज आते हैं, मॉनिटरिंग के अंदर आपको लिखना है, क्रेडिट वीकनेस में, और अगर आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट में बहुत कम फिगर मिलते हैं, यू नीड टू रिकंसिडर दिस एंटायर this one, what you call the new stock that would be there, and based on that what would be the DP. अभी एक साल सर वेट कर लीजिए, अभी ये जो चेंजेस आने वाले हैं कंपनीज एक्ट में, उसके अंदर ये सब है बैलेंस शीट के अंदर कि बैंकर को क्या दिया था, आप क्या दे रहे हो, राइट? एवरीथिंग इज देयर नाउ. वो तो बेसिकली बोरर कभी 31 मार्च का तो स्टॉक स्टेटमेंट देता ही नहीं है ना जी, ताकि फिगरें पकड़ी ना जा सके. इट इज ऑलवेज 10 days बिफोर और 5 days बिफोर. तो जा सकती है, आप 23 मार्च का दिया है मान लो, राइट, तो आप बोल दो 7 दिन का परचेज और सेल्स दिखा दो. अदरवाइज मैं अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं दोगे, सो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू असर्टेन. मैंने तो डॉक्यूमेंट मांगे, आपने दिए नहीं. पहले तो आपने 31 मार्च का क्यों नहीं दिया स्टेटमेंट? दैट इज द फर्स्ट, राइट. अगर आप नहीं देते हो, आप बीच वाला कोई देते हो, देन यू गिव मी अ फॉल बैक प्रोसेस एज वेल. जो हमारे इंस्टीट्यूट का भी प्रोसेस है फॉल बैक का. हमने जो कोविड में नहीं स्टॉक स्टेटमेंट के लिए किया ही था ना, स्टॉक ऑडिट के लिए, जब हम जा नहीं पाए थे लॉकडाउन के कारण, तो प्रोसेस हम कर सकते हैं. अगर आपका स्टेक ज्यादा है, इश्यू ज्यादा दिख रहे हैं, उसके दूसरे इंडिकेशंस भी ऐसे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, सो यू कैन वेरी वेल डू दैट पार्ट. इसमें एक और आती है कि बड़ी कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर इज मोर देन 100 crores 150 crores एंड वो स्टॉक स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो सारी एक्सेल में देते हैं. दे डोंट गिव बाय दैट ERP. कोई बॉर्डर स्टॉक स्टेटमेंट वो नहीं देता, जो उसकी ERP चल भी रहे हो या नहीं चल रहे, वो कोई भी कंप्यूटराइज स्टेटमेंट तो देता ही नहीं. सब एक्सेल में बना के या पेंसिल से लिख के दे देते हैं जी, इतना रॉ मटेरियल, इतना वर्क इन प्रोसेस, इतना क्लोजिंग स्टॉक है, विदाउट डिटेल्स ऑफ दिस. व्हाट इज द नहीं सर, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर डिटेल्स नहीं है, देन एज एन ऑडिटर वी नीड टू मेंशन दैट स्पेसिफिकली. आई थिंक मेरा आगे भी वो पॉइंट पे डिस्कस हुआ कि अगर नहीं है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू मेंशन इन योर ऑडिट रिपोर्ट. इफ यू फाइंड दैट, इफ यू आर इन अ पोजीशन टू क्वांटिफाई इट, लेट्स से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है डॉक्यूमेंट, जैसे स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसने लिख के दिया है कि इतना स्टॉक नहीं है, राइट, तो आपको उसके ऊपर एक्शन करना है. एक्शन कैसे करना है कि वे आपको वो अमाउंट लेके उसका नया डीपी कंप्यूट करना है. बट जहां आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है नए डीपी की, तो आप डिस्क्लेमर दीजिए कि ये केस के अंदर हमने इतने प्रोसेस किए, हमने ये डॉक्यूमेंट मांगे, ये डिटेल मांगे, बट वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले. दीज डिटेल्स आर वाइटल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट डीपी. हाउएवर वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद, हेंस वी आर नॉट इन पोजीशन टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट एस्पेक्ट. सो आपने सीधा बोल दिया कि आपने मेहनत किया, आपने काम किया, आपने मांगा भी है, बट इफ दे आर नॉट गोइंग टू
to provide you. How can you do it, right? ठीक है, thank you. Right. Great. Okay. Yeah. Thanks, sir. I think there is a question of Ajay Jainji. If any general moratorium in all cases of term loan due to COVID. Yeah, sir, that is given already for March to August for interest, this principal repayment, right? And that is already given. And now I don't think so there is any another moratorium that is going to be available. But in that scenario also, the banks did restructure those accounts, but this was the what you call is the regulatory prescribed restructuring. So there won't be any impact onto the NPA aspect then. Okay, so now in 5 minutes, I'll quickly take the case studies and then I think we can take questions if there are any. See, there are about 6 or 7 case studies. What you see in your screen is this, that there are 4 loans of a borrower. Borrower was not making repayment and the loans were getting marked as NPA. So in that scenario, what has happened was that a bank gave 4 new loans. Those loan proceeds were used for the repayment of earlier loans. So when we looked into the repayments and new loans and everything, and when we put all things together, we found that the net increase in exposure is the same amount as the difference of the new term loan. There was not a single rupee that was repaid by this person. So in that scenario, we surely reported this account as an NPA only, because in this case, you can't say that this account can continue to be as PA, right? So new loan cannot be sanctioned for the repayment of earlier loans. Then comes this TOD case that we discussed. TOD was given in a current account, and thereafter, the moment the TOD was given, the amount was debited for transfer to the borrower account, which was nearing to 90 days overdue, right? And the current account started with a new number of days of overdue, right? That is 9 दिन का ओवरड्यू उसमें दिख रहा था, तो वो तो आप एनपीए नहीं कर सकते, बट जब हमने ये पूरा देखा तो पता चल गया कि दोनों हॉग वॉश है, तो दोनों अकाउंट को फिर एनपीए किया। मैं ये स्टेटमेंट की बात कर रहा था। इसमें आप क्रेडिट टर्नओवर देखो कितना आएगा ये अकाउंट के अंदर, 4,36,000 बैलेंस है, 1 2 3 4 9 39 करोड़ का क्रेडिट टर्नओवर इसमें दिखेगा आपको, राइट? और उसके आगे अभी भी और है, टोटल 12 या 14 एंट्रीज है 9 करोड़ की। So now you can understand that current account to CC account transaction without any visible economic benefit. So please take care of this just by going to ATO or any report. Don't rely on that one, or don't form your opinion based on that. Do transaction review as well. ये सिनेरियो के अंदर TOD दिया 6 लाख का, 6 लाख का जैसे ही TOD दिया, कैश विड्रॉ किया और इमीडिएटली कैश डिपॉजिट किया। हमको कैसे पता चला? तो हमने टेलर अकाउंट में जाके देखा, विदाउट इवन वेटिंग फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इट वाज क्लेवरली डन इनटू दिस वे, राइट? सो दैट इज अ क्लियर केस ऑफ दिस इश्यू, गिविंग ऑफ अ न्यू लोन फॉर रिकवरी ऑफ द अदर लोन. This is a classic case. There are 5 accounts affected into this one, 3 accounts where the CC accounts were there. सीसी अकाउंट सब ओवरड्यू में जा रहे थे, कुछ पैसा नहीं आ रहा था। इश्यू ऐसा हुआ कि ये अकाउंट्स के अंदर रिकवरी नहीं था, तो 30 मार्च को एकदम से एक एंट्री आ रहे हैं कि भाई एग्रीगेट टोटल 48 लाख रुपीस क्रेडिट हुए ये अकाउंट्स के अंदर। और ऑडिटर को क्या दिखाया गया कि देखो सर कैश लेके आए हम, रिकवरी हमने प्रेशराइज किया, तो उसने पैसा भर दिया। On the face of it, it looks perfectly fine कि ठीक है, वो हर बार बैंक्स में होता है कि 30th मार्च 31st मार्च को वो रिकवरी कर देते हैं, that's fair enough. But something was not meeting the eyes. So I was just sitting idle. I was working at that point of time as along with a center statutory auditor. I was not a branch auditor for this. So then we started digging into more. We found that this is completely completely different than what it meets to the eye.
सो 30 मार्च को एक्चुअल केस ऐसा हुआ था, वो 3-3:30 बजे ब्रांच बंद हो जाती है, तो 5 बजे कैश क्लोज हुआ, पूरा कैश जितना भी था वो ट्रांसफर हो गया, राइट। वो ट्रांसफर होने के बाद 5:14 को कैश का चालू हुआ कि भाई कैश डिपॉजिट होना शुरू हुआ। तकरीबन 4 मिनट के अंदर 48 लाख रुपीस ऑफ कैश ले लिया कैशियर ने, राइट। जनरली लेट कैश का भी इश्यूज आते हैं, मिलते हैं, काफी बार होता है, सिस्टम हैंड ओवर नहीं किया तब तक भी आप कैश ले सकते हैं, बट इन दैट सिनेरियो 48 लाख शुड हैव गॉन इनटू द वॉल्ट, राइट। बट उसमें सरप्राइजिंगली क्या दिखा कि जैसे ही 48 लाख भर दिए, तकरीबन 9 मिनट के बाद 2 कस्टमर आए जिसको 48 लाख विड्रॉ करने हैं, एग्जैक्टली इतना ही है, राइट। तो वो 9 मिनट के अंदर आए, उसने विड्रॉ किया। तो क्वेश्चन ये हुआ कि ऐसे तो कौन से 2 कस्टमर है, पता चला कि ये दोनों भी उसके रिलेटेड थे। वो बोला ठीक है चलो रिलेटेड है, उसका भी इश्यू नहीं है, बट अकाउंट में पैसा तो है ना, वो तो कंफर्म कर ले। तो जब अकाउंट में जाके देखा तो अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो बोला कि वो कैसे लेके गया पैसा, तो पता चला उसको 24 लाख और 25 लाख के टीओडी दिए। So this is what, तो काफी बार हम कैश रिसीट आता है एकदम से तो हम मान लेते हैं ठीक है कर लिया हो गया, बट अगर आपको कुछ आगे भी और कुछ सस्पिशियस दिखता है तो प्लीज चेक इन डिटेल एज वेल, राइट। जरूरी नहीं है कि हर एक केस में आपको ये करना पड़ेगा, ये तो थोड़े इंडिकेशंस इसके अकाउंट के अंदर हमारे पास थे, इसके लिए हमने ये डिटेल में प्रोसेस किया, अदरवाइज ये इतना जरूरत नहीं रहता है। बट आपको जहां लगता है तो आपको ये भी एक एंगल ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर लोन के अंदर क्या होता है, जैसा लोन दिया सीधा डिसबर्समेंट गया एक अकाउंट के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बिजनेस था उसमें, और 70-80 लाख रुपए गए BMW गाड़ी खरीदने के लिए। So what the BMW is not going to be worked as a tractor, right? So that's how the things are moving around in that way. So आपको लिखना है divergence of fund, lower interest rate का benefit मिला, उसको longer time period मिला NPA आइडेंटिफिकेशन के लिए, और काफी बार ये पॉलिटिकल स्कीम्स भी आती है लोन वेवर की, तो उसमें गाड़ी फ्री में भी हो सकती है। आई डोंट नो हाउ द थिंग्स वुड गो अराउंड। And the last one is that the updation of total security value for the loan under consortium instead of the attributable share. ये केस में ऐसा हुआ था कि एक अकाउंट एनपीए था, उसका कंसोर्शियम एडवांस था 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ का टोटल सिक्योरिटी था, टोटल एक्सपोजर शायद 7,500 करोड़ का था, अकाउंट एनपीए में चला गया था। तो जो बैंक में हम ऑडिट कर रहे थे वो बैंक का तकरीबन 10 या 10% जितना शेयर था। सो अट्रीब्यूटेबल सिक्योरिटी 250 करोड़ आती है, एज अगेंस्ट 250 करोड़ सिक्योरिटी उन्होंने 2,500 करोड़ अपडेट कर दिया। अभी क्या हुआ कि 750 करोड़ का आउटस्टैंडिंग के सामने 2,500 करोड़ का सिक्योरिटी दिखा तो कंप्लीटली सिक्योर्ड दिखा, जबकि वो 500 करोड़ अनसिक्योर्ड पोर्शन था। तो अभी जब एमओसी देने की बात आई तो 500 करोड़ के ऊपर अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर एडिशनल प्रोविजनिंग की बात है, एंड दैट यू आल्सो ह्यूज इंपैक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है, काफी बार सिक्योरिटी वैल्यू इन्फ्लेट करके लिखते हैं जिसके कारण से अनसिक्योर्ड पोर्शन कम दिखे और उसके कारण आपको प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट कम हो जाते हैं, राइट राइट। सो दैट इज आल्सो दैट वी नीड टू बी चेकिंग ऑल अबाउट। सो अश्विनी जी, दिस इज व्हाट वांटेड टू शेयर। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक। थैंक यू वेरी मच सर। अगर किसी अटेंडिस के कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जहां फिर हम क्वेश्चन आंसर में कोई भी पेंडिंग नहीं है तो चैट बॉक्स की बजाय क्वेश्चन आंसर में लिखें। इफ जनरल मोरेटोरियम इन ऑल केसेस ऑफ टर्म लोन ड्यू टू कोविड, वो आई हैव टेकन केयर ऑफ सर, मैंने वो बोल दिया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो सर आप हमें हैंड रेज कर सकते हैं। अटेंडिस में से किसी का भी क्वेश्चन है तो चाहे तो आप क्वेश्चन के हुए में लिख दें। प्रदीप जी को क्वेश्चन है, हैंड रेज हुआ है। तो प्रदीप नंद जी का ही है। You can unmute yourself, sir. Yeah. Thank you very much. There is no question wrongly raised. Thank you. Thank you, sir. और पीपीटी मैंने शेयर कर दी है सबको। अगर किसी को नहीं मिली तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो तो मैं उनको दोबारा शेयर कर दूंगा। मैंने ब्रॉडकास्ट भी कर दी है और ग्रुपों में भी शेयर कर दी है पीपीटी, क्योंकि ईमेल आईडी मेरे पास सबका नहीं है तो इट विल बी बेटर कि आप वहां से ले लें। अगर किसी को ओपनिंग में दिक्कत आती है तो मेरे को स्पेसिफिकली बता दें तो मैं आपको दोबारा वो सेंड कर दूंगा। बाकी ऑडिट का तो अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि अभी यही लग रहा है कि होली के लगभग आएगा पैनल, उस समय ही क्लियर होएगा कि 90% या 70% या मिडवे कोई सरकार निकाल रही है कि नहीं निकाल रही। चांसेस अभी यही लग रहे हैं कि वो इश्यू बीच में ही फंसा हुआ है।
तो मेरे ख्याल में कुंतल भाई की डेलिब्रेशन ही इतनी अच्छी है, पीपीटी इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई रहता ही नहीं है, और आपने साथ साथ में सबके क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अनिल जी, आप, मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, आप मेरे को ना उस पे भेज दो, व्हाट्सएप पे एक हाई करके मैसेज भेज दो तो अश्विनी जी आपको भेज देंगे, उसमें भेज दो। मैंने दोबारा भी नंबर शेयर कर दिया अपना। तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल बीइंग ए मॉडरेटर ऑफ द पुसर रोड स्टडी सर्कल, कि जिन्होंने ये आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से प्रोग्राम करवाया, कि इवन दो हम सब जानते हैं कि बैंक ऑडिट जो है, जिसकी पोजीशन आज भी क्लियर नहीं है, फिर भी संडे के दिन हमारे इतने अच्छे नंबर में मेंबर आए, और रादर राजेश जी को कहीं किसी काम से मेरे ख्याल में जाना पड़ा, तो वो राजेश जी इसकी जो रिकॉर्डिंग का यूट्यूब पे शेयर करके अपलोड करके दे विल शेयर द लिंक। मैं वो लिंक भी सभी ग्रुप्स में भेज दूंगा, तो जो बाद में भी उसको रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिकनेक्ट भी हो सकते हैं कुंतल भाई के साथ। अगर आपका कुछ मैटर छूट गया, जहाँ किसी वजह से आपको दोबारा उसको सुनना है, तो जहाँ किसी को शेयर करना है, इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल। वी होप, हमने इसी होप से ये प्रोग्राम करवाया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लिमिट 90% वो मेंटेन रहे। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप इंस्टीट्यूट हमारी प्राइम बॉडी है उसको ही लिखें, और उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को लिखें कि आप उसके ऊपर और एफर्ट करें, पब्लिक फंड इन्वॉल्व है, ताकि हमारा ऑडिट 90% के साथ मेंटेन रहे। तो ये हमारा सभी मेंबरों का फर्ज बनता है कि हम अपना एक प्रेशर बिल्टअप करके रखें हमारी प्राइम बॉडी के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, ताकि वो जो अभी हमारे 2-4 दिन है उसके ऊपर अपनी 100% रादर 200% कैपेसिटी से काम करें, और आरबीआई के समक्ष उन चीजों को रिप्रेजेंट करते रहें जो मेंबर के इंटरेस्ट की हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट की हैं एट लार्ज। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम होपफुल कि ये 90% ही रहे, ताकि हमारे नए पैनल में भी जो ऑडिटर हैं वो सभी बैंक ले पाए, और हम इस जो कुंतल भाई ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं चेक करने की, तो उन चीजों को हम इंप्लीमेंट भी कर पाए। वो तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास ब्रांचेस आएंगी। क्योंकि अभी मेरी कल बात हो रही थी किसी बैंक के रिलेटेड किसी के साथ, तो वो कह रहे थे उस बैंक में अगर ये 70% इंप्लीमेंट हो गया, एग्जिस्टिंग ऑडिटर मोर देन 1000 है, और उनकी 300-400 ब्रांचेस में ही 70% कवर हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स को भी ब्रांच देने के लिए नहीं है, तो नया ऑडिट तो लेना बहुत बड़ी दूर की बात है। तो वी आर होपफुल कि 90% शुड मेंटेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुंतल भाई कि आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद टाइम निकाला और हमारे मेंबर्स को डेलीवरेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।